دن مچھلی کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے؟ امت محمدیہ کے لیے سب اجازت ہے، ہفتے کے دن شکار بھی کر سکتے ہیں، مچھلی کھا بھی سکتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں جو قوم داؤد تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے لیے مچھلی کا شکار ہفتے والے دن منع کیا گیا تھا۔ یہ بھی چونکہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی، ان کا ایک امتحان تھا، تو اس میں چونکہ 3 گروہ پھر ہو گئے تھے۔ ایک گروہ وہ اس طرح شکار کرتا تھا کہ ہفتے والے دن گڑھے بنا لیتا تھا۔ اچھا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام کہ اس ہفتے والے دن جو ہے نا وہ مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ یہ ایک اور آزمائش تھی ان کے لیے، امتحان تھا نا یہ۔ تو اب وہ کیا کرتے، وہ گڑھے کھود لیتے تھے، گڑھا اس طرح کا کہ جو ہے وہ مچھلی جب آ جائے نا اندر، اب وہ گڑھے میں پھنس جائے، اس طرح وہ گڑھے کھود کر وہ رکھ لیتے تھے۔ تو اب بعض لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح مت کرو، یہ بھی شکار ہی ہے ایک طرح سے۔ یہ جو تم جو کہہ رہے ہو نا ہم شکار نہیں کر، ہم پکڑنے ہے تو شکار، آپ نے اس کا راستہ تو روک دیا، شکار تو کر لیا، ایک طرح سے پکڑ تو لیا۔ وہ نہیں مانتے تھے کہ نہیں نہیں شکار نہیں ہے۔ اب اس میں 3 گروہ کے تھے، ایک گروہ تو وہی یہ حرکت کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی واضح، ایک گروہ یہ، دوسرا گروہ یہ کہ جو ان کو سمجھاتا تھا، ان کو نیکی کی دعوت دیتا تھا مگر یہ باز نہ آئے، تیسرا گروہ یہ تھا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یوں پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو شکار کرتے تھے، ان کے بیچ میں پھر دیوار ایک بنا دی تھی کہ یار یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ہمیں ان سے دور رہنا ہے۔ انہوں نے دیوار بنا دی، دیوار کھینچ دی۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ اس محلے سے کوئی نکلا نہیں، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا مسئلہ، کیوں نہیں نکلا، آج کوئی بھی نہیں نکلا۔ اب جو ہے وہ دیوار پہ چڑھ کے دیکھا گیا تو دیکھا کہ وہ تو بندر گھوم رہے ہیں۔ تو پھر یہ جب اندر داخل ہوئے یہ لوگ، تو اب یہ لوگ تو نہیں پہچان لیتے جو صحیح تھے، البتہ جو بندر کی صورت اندر یہ پہچان لیتے، جو بندر ہو گئے تھے، جو مسخ ہو گئے تھے، وہ پہچان لیتے اپنے رشتہ داروں کو، اور ان کو سونگتے تھے اور روتے تھے، کیونکہ زبان تو ان کی بند ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی۔ وہ ہے کہ وہ یہی اظہار کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم لوگ تمہاری بات مان لیتے، ہم یہ حرکت نہ کرتے۔ پھر 3 دن وہ زندہ رہے، پھر مر گئے وہ۔ مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، اے میرے سرکار، اے میرے سرکار، غم زدوں کے تم ہو غم گسار، اے میرے سرکار، اے میرے سرکار۔ جب گھر سے نکلے تھے تو اسی نیت سے نکلے تھے کہ در مرشد پہ جائیں گے، وہاں جا کے سیکھنے کو کافی کچھ ملے گا۔ جو مین چیز تھی آپ نے یہ بتایا کہ اگر ہم شریعت پہ عمل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو دنیاوی فوائد ہمیں وہ بھی حاصل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا، میں پہلے بھی ایک بار آ چکا ہوں۔ دعوت اسلامی کی جو برکتیں ہیں وہ اسکول ٹائم سے ہی ہمیں مل رہی ہیں۔ جو ہمارے ٹیچر تھے وہ ہمیں اجتماع میں لے کے جاتے ہوتے تھے، جمعرات کو بھی اور ویسے بھی۔ بہت ساری چیزیں مدنی مذاکرے میں سیکھنے کو ملتی ہے۔ بعض اوقات بہت سی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتی، ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اسے ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سیکھنے کو تو بہت کچھ ملتا ہے، بٹ سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ یہ اللہ کے ولی کا دیدار، اللہ کے ولی کی زیارت ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک اسپریچول کنیکشن ہوتا ہے تو وہ ایک الگ ہی محبت ہوتی ہے۔ اصل میں شروع سے ہمارا جو مدنی ماحول تھا نا، میرے گھر والوں کا، جو میرے تمام گھر والے تھے وہ ماحول میں تھے، تو ہمارا میں شروع سے فیضان مدینہ آتا تھا، ہر جمعرات کے اجتماع وغیرہ میں میں ہکلا کے بولتا تھا۔ تو 10 سال کا تھا، پھر میری والدہ مجھے یہاں لے کر آئیں ماموں کے ذریعے، میرے محمود ماموں یہاں ہوتے تھے، انتقال ہو گیا ان کا، تو ان کے ذریعے یہاں پر لے کر آئے۔ پھر باپا جان نے میرے اوپر دم کیا، تو اس کے بعد میں بولنے لگا، پھر اس کی برکت سے میں یہاں آنے لگا۔ میں نے یہاں تقریباً 15-20 سال کے بعد یہاں پہ میں نے اعتکاف کیا، مجھے یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض۔ الحمدللہ میں نے داڑھی کی بھی نیت کری، جو کٹوائی ہے اس سے میں نے توبہ بھی کری اب تک، اور اب میں نے پکی نیت کر لی ہے داڑھی کی۔ مدنی مذاکرے میں شرکت ہوئی، بہت دل کو سرور ملا۔ میرا تعلق ملتان شریف سے ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمارے علاقے میں ایسا کام کیا ہے کہ جو لوگ گناہوں کی دلدل میں تھے، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے الحمدللہ وہ سنتوں کے عامل بن گئے، مبلغین بن گئے، حافظ قرآن بن گئے۔ الحمدللہ امیر سنت درس نظامی کے حوالے سے اور طلباء کرام کے حوالے سے بہت شفقت فرماتے ہیں اور دعائیں بھی فرماتے ہیں۔ الحمدللہ میں بھی درس نظامی کا طالب علم ہوں، اور یہ امیر علیہ سنت کا ہی فیضان ہے کہ میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں 5ویں درجہ خامسہ میں طالب علم ہوں۔ الحمدللہ مجھے ذمہ داریاں بھی ملی ہوئی ہیں، اور میرپور خاص شہر کے اندر میں ان ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہوں۔ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، یہاں پہ میں آیا ہوں، میں نے یہاں پہ 3 دن کی اسٹے کی ہے، مطلب جمعے سے آیا ہوں اور 3 دن کا اسٹے ہے میرا یہاں پہ۔
اور ایسا ماحول میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا. میں نے بہت جگہوں میں وزٹ کیا ہے, تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ہر ہفتے جو ہے میں یہاں پہ آؤں گا انشاءاللہ. میں تو یہی کہوں گا کہ میری جو ایج کے جتنے بھی لوگ ہیں, مجھ سے بڑے لوگ ہیں, آپ بھی آئیں اور اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں, اور اپنے ساتھ جتنے بھی لوگوں کو آپ لا سکتے ہیں ان کو لے کر آئیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد کی سعادت پائیں, اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر داخل مسجد ہوں تو نئے سرے سے نیت کر لیجئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے. نہ بھی دہرایا زبان سے تو دل میں نیت کی تھی تو وہ ہو گئی, اور دل کی نیت شرط بھی ہے. خالی زبان سے کہہ لینے سے اور دل میں نیت نہ ہو تو نیت نہیں ہوگی. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی, افطار کا ٹائم آ گیا, مسجد افطار نہیں کر سکیں گے, ہاں نیت کر لیجئے اعتکاف کی, اور اب بے شک افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں تاکہ ثواب ملے, اور کوئی ذکر و درود کر لیں, چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کریں, کھائیں, سوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1445 سن ہجری کی کے ذیقات شریف کی 17ویں رات ہے. اس مناسبت سے رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 17. مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, بے شک تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں گی, ضرور نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا دل سیاہ اور مردہ بھی ہو جاتا ہے؟ اور اگر دل سیاہ اور مردہ ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور اس کو درست کرنے کا, اس کو روشن اور زندہ کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی بلیک پوائنٹ بنتا ہے, سیاہ نقطہ. پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے, بلیک نقطہ جو ہے, بلیک پوائنٹ وہ پھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, بلیک ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. اب یہ وہ کالک نہیں ہے جو ہم کو مطلب کلر کی پینٹ کی کالک ہوتی ہے. اب وہ مطلب ایک لفظ ہوتا ہے بازو کا تو اس کے معنی کئی ہوتے ہیں. جیسے دل پر زنگ لگ جاتا ہے, یہ بھی حدیثوں میں. اب زنگ سے مراد وہ تو نہیں ہے کہ لوہے پر جو نظر آتا ہے زنگ وہی لگتا ہے. تو اب اس کے معنی جو آپ نے پوچھے تو وہ
अर्ज करने की कोशिश की जाती है, फिर ये दिल सख्त हो जाता है। तो दिल गले ने पूछा सियाह और सख्त, सख्त भी होता है दिल, मुर्दा, दिल मुर्दा भी होता है, सख्त भी होता है, औंधा भी होता है। ये मुख्तलिफ इसके लिए अल्फाज हदीसों में इस्तेमाल किए गए हैं। दिल अंधा हो जाता है गालिबन, ये भी है ना, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। तो मतलब इसके भी माना होते हैं। जो दिल की वो हमारे सर की तरह आंखें तो नहीं जो अंधा हो जाएगा ना, उस पर मतलब अंदर जाकर कोई ब्लैक कलर कर देगा। तो अब इसके माना अगर मजमूई तौर पर अगर अर्ज करूं तो मैं समझ पाया हूं कि नसीहत बंदे के दिल पर असर नहीं करती, उसको रिक्कत नहीं आती। जैसे दुआ में दिल लरसता है, कांपता है, इबरत नहीं होती। कोई ऐसे मामला देखकर, ये हदीसें सुनकर, आयतें सुनकर, बयान सुनकर इसको खास कुछ असर नहीं पड़ता, या बिल्कुल बातों का असर नहीं पड़ता। बल्कि बाजों के दिल तो ऐसे अजीब और गरीब मतलब वो कीचड़ आलूद होते हैं कि नसीहत पर इनको हंसी आती है, कोई समझाए तो मजाक उड़ता है। और इस तरह के कीचड़ आलूद दिल आपको सोशल मीडिया पर शायद महसूस हो जाएंगे कि जो नसीहत करने वालों की, दीन की दुरुस्त खतूत पर दावत देने वालों की, नेकी की दावत देने वालों के अंदर से भी कुछ निकाल कर उसको उछालते और मतलब ये कि उस पर बिला वजह तनकीद करते होते हैं। तो इनका दिल ऐसा लगता है कि बहुत बुरी हालत में। इन सबको इलाज करना चाहिए, और दिल का इलाज अहले दिल के पास होता है। जो मतलब जो नेक आदमी हो, परहेजगार हो, वाकई सच्चा आशिक रसूल, खुश अकीदा सुन्नी हो, तमाम सहाबा किराम को मानता हो, एक भी सहाबी पर तनकीद नहीं, सब के सब अहले बैत पर वो आंखें बंद रखता हो, सबसे अकीदत रखता हो, औलिया किराम की गुस्ताखी ना करता हो, तो हर तरह से वो खुश अकीदा हो। तो ऐसा शख्स अगर अहले दिल है, नेक है, परहेजगार है और अहले इल्म भी है वो, तो इसकी सोहबत से दिलों का जंग भी उतरेगा, दिल का माइल भी धुलेगा और दिल की कालक भी धुलेगी, दिल की सख्ती भी दूर होगी, मुर्दा दिल भी जी उठेगा। जैसे कि हदीस पाक में कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है, तो ज्यादा हंसना भी बुरा है। जहाँ हंसना जो जोर जोर कहकहा मारते हैं तो वो भी हंसने की किस्म है, लेकिन इतनी आवाज निकली है खुद सुना, तो ये भी हंसना, हंसने की तारीफ यही है, तो वो कहकहा कहलाता है। तो ज्यादा हंसना बहरहाल वो भी दिल को मुर्दा करता है। तो इन सारी बातों को सीखना भी है, समझना भी है और इस पर अमल भी कर रहा है, तो इंशाअल्लाह दिल मरेगा भी नहीं, जिंदा भी रहेगा और रोशन भी रहेगा। मौत को याद करने से, कसरत तिलावत से भी जो दिल है उसकी कालक धुलती है, जंग धुलता है और दिल जो है वो सलामत रहता है। और सलामत दिल ही मतलब कामयाबी है, वो कल्बिन सलीम है ना कुरान करीम में। यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वो दिन के जब ना माल फ़ायदा देगा ना बेटे, मगर ये कि वो शख्स के जो अल्लाह के पास कल्बे सलीम लेकर आए, वो कामयाब होगा बरोज़ क़यामत के जो सलामत दिल, कल्बे सलीम माने सलामत दिल लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। तो अब आजकल तो दिलों का हाल ये है कि मुर्दे भी हो गए, क्या मुर्दे सड़ गए। ऐसी मतलब गफलतें और ऐसी हंसियां, ऐसे कहकहे, ऐसे चुटकुले और ऐसा माहौल बन गया है कि बस दीन के नाम पर लोगों को मजाक सूझता है। माअज़ल्लाह इस तरह के लोग भी आप माशरे में बहुत कुछ देखते होंगे, है ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं आती मतलब बस मुसलमान के घर में पैदा हो गए और नाम इस्लामी है, खानदान मुसलमानों का, तो यूँ समझ आ, यूँ बस पहचान ये मुसलमान है। बाकी वो किसी का शेर याद आ रहा है, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मुहम्मद का तुम्हें पास नहीं, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और ना वज़अ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, अरे तुम्हारे अब लिबास, तराश खराश, चेहरा देखो तो गैर मुस्लिमों जैसा दाढ़ी साफ करना, मुसलमानों जैसा चेहरा नहीं है,
दाढ़ी साफ होने वाला, ये गैर मुस्लिमों वाला चेहरा है, माफ़ कीजिएगा। और तो छोटी छोटी दाढ़ी रखते हैं, तो ये भी वही लोग रख रहे हैं और उन्हीं की नक्काली हो रही है। तरह तरह की तराश खराश चेहरे में की जा रही है। सर के बालों में भी अजीब व गरीब स्टाइल, मतलब आधे सर के बाल होते हैं, बाद ऊपर घोंसला बना कर रखते हैं, कोई पीछे वो औरत की तरह पोनी बनाते हैं, वो क्या क्या हो गया है। तो बस आम है तुम नसारा ये ने क्रिश्चियन, तो बनावट में तुम्हारे जो नज़र आ रहे हो तुम, तुम्हारे लिबास में, तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारे अंदाज जो है इसमें, तो वज़ आम तुम नसारा, तो तमद्दुन में हुनूद, तुम्हारे रस्म व रवाज हुनूद जैसे, हुनूद माने हिंद की जमा है, तो इन जैसे तुम्हारे रस्म व रवाज हैं। वज़ आम तुम नसारा, तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है। वो हैरत से शायर कह रहा है ये मुसलमान है, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, इनको भी पीछे रख दिया कि वो यहूदी भी शर्मा जाए, मुसलमान न जाने ये कहाँ जाके रुकेगा, ऐसा होता जा रही है। ये भी ग़ालिबन इक़बाल का शेर है। हाँ, जिन्हें कितना पुराना शेर है, उस वक्त की कैफियत थी, अब तो जनाबे वाला अब जो हालत हमारे सामने है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो हमें इस्लामी रंग में अपने आप को रंगना चाहिए। खुदा पनाह दे ऐसी सोचों से कि इस्लामी रंग में नजर आने वाले बंदे को देखकर लोगों को हंसी छूटती है। मौलाना वो क्या समझ पड़े बेचारे यार, बस यार हम लोग यूं ये बोलते हैं इस तरह। हालांकि मौलाना के सामने आके बैठेंगे तो पता चलेगा कि अक्ल किसमें, दुनियावी एतबार से भी जिसको तुम अक्ल बोलते ना वो किसमें ज्यादा है। आके बैठोगे तो पता चलेगा, दूर दूर से तुम क्या समझ पड़ेगी। तो हमने जिसका कलमा पढ़ा है वो चेहरे मुबारक पे दाढ़ी शरीफ, सर पर इमामा शरीफ, बाल इंग्लिश नहीं जुल्फ हैं, सब समझ सकते हैं। तो जिनका कलमा पढ़ा है, अब उन जैसा अगर हुलिया बनाने की, उनकी सुन्नत अपनाने की कोई कोशिश करे तो हंसी आती है लोगों को, ये मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया। भाई तुमने कलमा जिसका पढ़ा है, उनको तो तस्वुर में देखो कि उनका मुबारक हुलिया शरीफ क्या है। तो अब कहाँ खड़े हो यार, क्या बोल रहे हो? उनकी नकल करने वाले कि तुम मजाक उड़ा रहे हो, तो तुम्हारा हश्र होगा क्या? किसके साथ उठोगे? क्या अपने आका के मुखालिफिन के साथ क़यामत के दिन तुम्हें उठना पसंद है? अल मरउ मअ मन अहब्बा, जिससे जो मोहब्बत करता होगा उसके साथ ही क़यामत में उठेगा। तो जो मतलब इस तरह की शक्ल सूरत बना रहा है, दाढ़ी जुल्फे इमामा शरीफ सुन्नत वाला लिबास, तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का उसका इजहार है, प्यारे आका से मोहब्बत है, इसलिए ये बना रहा है। तो ये इनके गुरों में उठेगा, इनके पीछे पीछे जन्नत की तरफ चलेगा। और जो इनका मजाक उड़ाएगा ये अपने जैसे मॉडर्न या फिल्म स्टारों और इस तरह के लोगों के साथ उठे और फिर इनके पीछे पीछे जहाँ जाएगा आप सब समझते हैं। अल्लाह ना करे तो इससे पहले हम तौबा कर लें, तो हम तौबा कर लें, सच्ची पक्की तौबा कर लें और उस गुरोह पर हाथ रखें जो जन्नत में जाएगा, जन्नत की तरफ बढ़ेगा। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। ये जो आपने दिल के ताल्लुक़ से भी अभी कुछ इरशाद फरमाया था, तो एक शख्स है जो कि नमाजी भी है, बाशरा है और हर तरह से हमें लगता है कि सुन्नतों पर अमल भी करते हैं, मगर अगर वो ये कहते हैं कि यार क्या करूं, मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलते, यानी कि लोग रो रहे होते हैं मगर मुझे रोना नहीं आता, तो क्या उसके आंखों से आंसू का ना आना, उसका ना रोना, जबकि उसका जो हुलिया है, वज़ाक़ता है, वो सुन्नतों के मुताबिक है, नमाजी है, तो क्या ऐसे शख्स के बारे में कहा जा सकता है कि या वो ख़ुद अपने दिल के बारे में अगर ये कहे तो उसका तो कहना अपनी जगह पर है, तो उसके बारे में क्या ये होता है कि जनाब ये इसका दिल सख्त हो गया, इसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते, तो क्या दिल की नरमी के लिए आंखों से आंसू का निकलना ज़ाहिरी तौर पर ये ज़रूरी है? कोई खशियत क़ल्ब की हो तो ये भी इसका भी कोई हिसाब होता है? अब मैंने तो खैर जनरल बात करी है, किसी फ़र्द को, तो ज़र ये कोई हमारे लिए कसौटी नहीं है कि कोई किसी को रोना नहीं है तो हम ये फैसला कर देंगे इसका दिल सख्त हो गया है।
हाँ, अपने लिए तो हमेशा डरना चाहिए, चाहे फूट फूट कर रोता हो कोई, फिर भी डरना चाहिए कि कहीं मेरा दिल सख्त ना हो गया हो। दूसरों के लिए ये जो भी मैंने किया, इसमें न किसी को हंसता हुआ देखकर ये कहें इसका दिल मुर्दा हो गया है, किसी को नेकी की दावत दी तो वो मतलब हमारी बात मानता नहीं है और राय रास्त पर आ नहीं रहा, तो हम ये उसके ताल्लुक से अल्फाज ना कहेंगे इसका दिल सख्त हो गया है। हम मैंने अपनी अपनी करेंगे। एक तो ये कि उसको अगर कहेंगे तो उसके दिल आज़ारी भी होगी। दूसरा है कि ये हम फाइनल कर नहीं सकते किसी के बारे में कि हो सकता है कि अनकरीब उसको विलायत मिलने वाली हो, अल्लाह पाक का ऐसा करम होने वाला हो कि ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो ये कि कोई ऐसा वक्त आने वाला हो कि वो आपसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला हो, और अपने लिए तो हमेशा डरे आदमी, भले रोता है, नेकी की दावत देता है, लोग असर भी कबूल करते हैं, बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं इसकी बातों से, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में अपने आप को मतलब यानी कि वो डरा करे, क्योंकि किसी के बारे में किसके बारे में अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर यानी कि छुपा फैसला क्या है ये कोई नहीं जानता। इसके बारे में क्या है कि हदीस से इस तरह की है कि अल्लाह पाक अपने फाजिर बंदे से भी, नाफरमान बंदे से भी अपने दीन का काम ले लेता है, दीन की खिदमत ले लेता है, मगर उस फाजिर बंदे का, उस नाफरमान का कोई उसमें हिस्सा नहीं होता। तो मैंने इतनों की इस्लाह कर दी, मैं दुनिया में छा गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो मेरी बात मेरा बयान सुनता है लरज उठता है, रो पड़ता है, लेकिन कुछ पता नहीं कि अल्लाह पाक का छुपा फैसला अपने बारे में क्या बंदा डरे कि ऐसा ना हो कि ये सब जन्नत में जा रहे हूँ और मैं इनको देख रहा हूँ हसरत से, मेरा अल्लाह ना करे कोई फैसला कुछ और हो मेरे बारे में। तो ये सब को डरना बहुत ज़रूरी है और लाजिम है, कंपल्सरी है। तो ये अगर मेरा ये जो मैंने अर्ज किया, ये अगर आपने जहन में बिठा लिया ना, अल्लाह करेगा ना तकब्बुर आएगा आपको, ना मतलब है कि अपने आप को कुछ समझने का जहन बनेगा, वो नहीं यार मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। ये नहीं यूँ वैसे अल्फाज तो बहुत होते हैं, हकीर फ़कीर तो हर फर्द होता है, मैं फ़कीर हूँ हकीर हूँ, अभी हकीर फ़कीर को ज़रा मिजाज के ख़िलाफ़ बात कर दो तो मतलब मुंह तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा वाली कैफियत हो जाती है। तो ये नहीं, अल्लाह से डरे और ज़बान से नहीं, दिल से, और दिल में और ज़बान से कहा और रिया के लिए नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है हकीर फ़कीर कहने में, लेकिन हालात बहुत ख़राब है। और मैं यानी कि हर फर्द में जो अर्ज कर रहा हूँ अपने ऊपर ले, इसके बारे में ना सोचे, उसके बारे में ना सोचे कि वो ऐसा ये ऐसा, एक उंगलियां उठाते हैं, दूसरे 3 उंगलियां अपनी तरफ है, वो ऐसा, तो ये 3 उंगलियां कह रही है तू ऐसा, तू कैसा। तो हम इन 3 उंगलियों के माने उस एक उंगली को भी बेंड करके अपनी तरफ ले आए, अपने को देख, किसी को क्यों मतलब वो इसके दिल की टटोल में पड़ता है, दिल की टटोल के हम मुकल्लफ भी नहीं है कि उसके दिल को चेक करें, ना हमारे पास कोई ऐसा स्कैनर है कि जिससे हम दिल को चेक करके उसके बारे में ये कुछ निकाल सकें कि इसके अंदर क्या क्या भरा है। सबके लिए दुआ खैर करें तो इंशाअल्लाह अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह सबको नेकी हिदायत दे, जो नेकी के रास्ते पर नहीं है वो आ जाएं, हम भी नेकी के रास्ते पर सही मानों में आ जाएं और जम जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अहमद अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे चचा आपसे बहुत मोहब्बत रखते थे, 100 से ज़ायद मदनी मुज़ाकरे उनके घर देखे होंगे, आज उनका इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआ भी फरमा दे। और क्या बाप के फौत होने से बालिग नाबालिग सब यतीम हो जाते हैं? अल्लाह पाक आपके चचा का, अल्लाह पाक मरहूम चचा को गरी करे, रहमत फरमाए, बेहिसाब मग़फ़िरत करे। अल्लाह पाक तमाम सोगवारों सब्र जमील पर अजर जजील मरहमत फरमाए। मेरे पास जो कुछ टूटे फूटे अमाल है अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, तो बारगाह रिसालत में नज़र करके आपके चचा को इसाले सवाब करता हूँ। जब नाबालिग तो यतीम कहलाएंगे, वालिद फौत हो गया, तो बालिग जो है वो यतीम नहीं कहलाएगा, फिर तो हर बूढ़ा आदमी फिर यतीम ही होगा। बूढ़ों के माँ बाप कहाँ जिंदा होते, आमतौर पर नहीं होते। तो इसलिए वो बालिग होते ही, लड़की हो या लड़का, जैसे बालिग हुआ
اب ان کی یتیمی ختم ہو گئی. اب اس کی بالغ یہ اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ لڑکی 9 سے 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسے آثار مقرر ہیں اس کے کہ کوئی ایسی نشانی اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ جس سے وہ بالغہ ہو جائے گی. یا جو لڑکا ہے وہ 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے تو اس میں بھی نشانی ہے کہ وہ نشانی کہ ظاہر ہوئی تو وہ بالغ ہو جائے گا 12 اور 15 کے درمیان. اور اگر نشانی ظاہر نہیں ہوتی تو لڑکی ہو یا لڑکا جیسے ہی اسلامی سال کے حساب سے 15 سال کے ہوئے اب یہ بالغہ یا بالغ ہو گئے. نماز فرض ہو گئی. رمضان کے آتے ہی روزہ فرض ہو جائے گا. رمضان چل رہا ہے تو اب روزہ فرض ہو گیا. صاحب نصاب ہوگا تو اب وہ شرائط پائے جو جانے کی صورت میں سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوگی. یعنی اب وہ شریعت کا مکلف ہو گیا. مکلف مانے پابند, اسلامی احکام کا پابند ہو گیا. نابالغ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں لیکن بالغ کے مسائل جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ اسلامی احکام اسلامی مسائل کا پابند ہے. جیسے جیسے اس کا وقت آ جائے گا یہ اس پر فرض ہوتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. حسن فیاض سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کمر پر ہاتھ باندھ کر چلتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ کمر پر ہاتھ باندھنا تو پیچھے ہاتھ رکھتے ہیں جی یوں کر کے پیچھے کی طرف. یہ کمر پر ہاتھ رکھنا نہیں کہلاتا. کمر پر ہاتھ رکھنا یوں کہلاتا ہے. یہ نا کمر یہ ہے سر, وہ پیٹھ ہے, اس کو کمر بولتے ہیں. تو یوں ہاتھ رکھنا یہ کمر پر ہاتھ رکھنا کہلاتا ہے. تو نماز کے احکام پیج نمبر 80 تا 81 کمر پر ہاتھ رکھنا یہ نماز کے تعلق سے مسئلے چل رہے ہیں. تو نماز پر کمر میں ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی. نماز کے علاوہ بھی بلا عذر کمر پر یعنی دونوں پہلوؤں کے وسط یعنی سینٹر میں ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے محبوب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمر پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کی راحت ہے. حوالہ السنن الکبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 408 حدیث نمبر 35,066 دار الکتب العلمیہ بیروت. یہ حدیث وقت بیان کر کے بہار شریعت کے حاشیے میں لکھا ہے یعنی یہ یہودیوں کا فعل ہے کہ وہ جہنمی ہے اور ورنہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں کیا راحت ہے. وہی کہ مطلب یہ ان کا طریقہ ہے, ان کا کام ہے یہ ہاتھ رکھنا کمر پر. تو مسلمانوں کو ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے. تو یہ مناسب نہیں ہے جو میں نے الفاظ کہتے کہ یہ ناجائز نہیں ہے. اگر کسی نے بلا عذر بغیر مجبوری کے بھی کمر پر ہاتھ رکھے تو گناہ گار نہیں کہیں گے. نماز میں رکھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہے یعنی ناجائز و گناہ ہے نماز میں. اور ایسی نماز فعل نماز ہے. یہ اگر غلطی کی تو غلطی سے رکھا تو سجدے سہو واجب یا نبید بھائی نماز واجب الادا ہوگی یا سجدے سہو اگر بھول کر رکھ لیا تو ہے نا. نماز کا نہیں ہے یہ فعل. نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی. اگر نماز میں ایسا رکھا تو کہ یہ مکروہ تحریمی, اور مکروہ تحریمی جہاں بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ناجائز و گناہ. اس میں جہنم کے عذاب کا حقدار بنتا ہے بندہ مکروہ تحریمی کام کرنے والا, کیونکہ یہ ناجائز و گناہ ہے. اور ہر گناہ پر جو ہے گناہ ہے نا, گناہ پر جہنم کے عذاب کا حقدار بنتا ہے بندہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. وقاص اکبر سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ہمارے ہاں بچے کو دیکھ کر ماشاءاللہ نہ کہے تو کیا ہم اسے بول سکتے ہیں بھائی ماشاءاللہ تو بول دیں؟ کیا ہے بولنے میں جبکہ جھگڑے کا انداز نہ ہو. بے تکلف بھائی ماشاء اللہ تو بول دو. میرے چاند کے ٹکڑے کو آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ آپ کے نزدیک چاند کا ٹکڑا ہے یا آپ کا لالم لال ہے, ہو سکتا ہے اس کو پسند ہی نہ آیا ہو.
मतलब ये कि अपना बच्चा चाहे काला कलोटा हो, है ना, ये हीरा और चांद का टुकड़ा है माँ बाप के लिए, लेकिन दूसरों को जरूरी नहीं कि पसंद आए। तो अपनी या गैर की कोई चीज़ पसंद आए तो उस पर माशा अल्लाह बारकल्लाह इस तरह के अल्फाज कहने चाहिए ताकि नज़र ना लगे। तो अब पसंद ही नहीं आया तो नज़र की सूरत तो यहाँ लग नहीं रही। इसमें सैयदी कोई वो दिल आज़ारी का पहलू नहीं निकलता? हाँ, वो अलग बात है कि दिल आज़ारी तो माज़अल्लाह कोई बच्चा बदसूरत है, उसके माँ बाप को या उसके भाई को या बहन को आप कहेंगे कि ये यूं कहेंगे ना, खास है नहीं है, वो गए काम, आप उसके दिल से उतर गए। नहीं, जिसमें सैयदी ये सूरत हो के भाई तुम देख रहे हो मेरे बच्चे को माशाल्लाह, तो कहो नजर नहीं लगा देना कहीं। बाज़ औक़ात बेतकल्लुफ़ी में लोग कहते हैं इस तरह की बातें तो बुरा लगता नहीं होगा। ठीक, ये आ रहा है हुजूर सीजन, नहीं बुरा लगे बिल्कुल। अब जब बेतकल्लुफ़ एक दूसरे को क्या क्या बोल रहे होते हैं तो वो मतलब ये नहीं कि ये मौके मुनासिबत से इसकी सूरत बनेगी दिल आज़ारी की। अभी सीजन आने वाला है हुजूर, जानवर आने वाले हैं जी, जानवरों का सीजन आने वाला है। ये क्या मतलब मरिया लुटा लाया, हाँ, अब हड्डियां निकल आई वो हैं। उसका जितने जेब में था उससे 10 गुना ज्यादा पैसे निकल गए। हाँ, तो उसके दिल की लाने में। हड्डियां निकल आएंगी। हाँ, जो तो लाया बोले क्या बेचारा। लेकर आ गया। हाँ, यहाँ तो दिल आज़ारी का वो सामान नजर आ रहा है। वो लाया, वो अपनी हैसियत के मुताबिक जो बेहतर लाया होगा, वो आपको समझ में नहीं आया, उसका तो जितना समझ में आया था उससे ज़्यादा का लेकर आ गया बेचारा। तो इसमें मेरा ख्याल है उसको अगर कोई ऐसी तसल्ली वाली बात की जाए, होना या क्या सूखा जानवर ले आया तू ज़्यादा पैसे दे देता तो मैं ज़्यादा अच्छा ले आता भैया। अगर गोश्त फरोश का खतरा था मेरे तो कुछ पैसे ले लेते यार, ये तो फूंक मारो तो गलती हो जाएगा। हाँ, तो लोगों के दिल खुश करने वाले वो अमल के जिसमें झूठ भी ना होता हो, ये अच्छा आपने कह दिया। हाँ, आदमी आगे बढ़े। हड्डियों का मतलब वो ढांचा हो तो बोले कि यार, तो मोटियां यार, चर्बी तो समाती नहीं इतनी हो गई इसमें तो कुछ ना बोले और क्या, कुछ करके माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा, आगे निकल जाओ। तो झूठ से तो हर जगह बचना है ना, आदमी झूठ बोल के क्या फायदा होगा, सच की तरफ रहे। बेशक। जी, सवाल चलाइए। क्या मुर्शिदी हज का मौसम आ रहा है, मुझको भी मदीना जाना है बापा, आप दुआ फरमा दे, जाका बुला ले, के दो मुझसे चल मदीना, के दो मुझसे चल मदीना। अल्लाह पाक आपको भी, आपके माँ बाप को भी, खानदान वालों को हज नसीब फरमाए, मीठा मदीना दिखाए। बार बार ये सआदत हम सब के हक में ये दुआएं कबूल हों, आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। वैसे तो सब दिन ही अल्लाह पाक के हैं, लेकिन लोगों की एक बात है कि जुम्मा वाले दिन कोई भी काम हो नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे नुकसान होता है, या फिर ये कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें बरकत पड़ जाती है तो वो काम जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो इसके बारे में इरशाद फरमा दे, क्या ये बातें करना सही है? जज़ाकल्लाहु खैर। जुम्मे को नहीं करना चाहिए, हाँ वो जुम्मे के दिन ना पढ़े। अच्छा, वैसे ही ना पढ़े। अच्छा, ये वाकई सवाल है या कुछ कहलवाना है सोशल मीडिया के लिए? जब से होश संभाला बिस्मिल्लाह तो सुन रखा होता है ना, अम्मी अब्बू कभी तो बिस्मिल्लाह बोलते हैं, खाने से पहले बिस्मिल्लाह, और ये तो ये सब यानी कि ये कैसे है कि बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़नी चाहिए, ये आदमी सोच कैसे सकता है? तो ये सवाल बना कैसे? वो सोचते हैं तो बाज़ औक़ात सोचे इसी तरह की पैदा हो जाती हैं कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो ये एतक़ाद यही है कि उसके अंदर बरकत आएगी, लेकिन बरकत का माना ये ले रहे हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होगा काम, वो लंबा ही होता चला जाएगा, लंबा ही होता चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह जो है वो किसी काम से पहले पढ़नी नहीं चाहिए। तो ये सोच का जो दायरा है वो इस मकाम पर पहुँचा के काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो ही ना ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। भाई जब हदीसों में बिस्मिल्लाह का तज़किरा है, कुरान करीम में भी बिस्मिल्लाह मौजूद है और सारे मुसलमान बिस्मिल्लाह बोल रहे हैं, नमाजों में भी सना
पढ़ते हैं, फिर आऊज़ और बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ी जाती है। सुन्नत कुरान की जो तिलावत करता है उसको भी पता होता है कि भाई आऊज़ भी पढ़ना है, शुरू में बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है। तो ये सोच बनी कैसे कि बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो बरकत हो जाएगी, तो क्या पढ़नी चाहिए ये पूछे, यानी इसका पूछना ताज्जुब खेज है। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई बाज़ों का ऐसे सवाल आ रहे हैं आजकल कि कहीं मतलब कुछ कहलवा कर, अल्लाह बेहतर जाने साहिल की नीयत नहीं पता, लेकिन मतलब समझ में आ नहीं रहा ये सवाल ये करना कि बिस्मिल्लाह के कहे बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। हर मामले में बिस्मिल्लाह के बिस्मिल्लाह ना पढ़े, खाना खाते बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो कौन खाना खाएगा? शैतान खाएगा ना, बेबरकती हो जाएगी। और बाकायदा ये हदीस मौजूद है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना मुलाहाजा फरमा रहे थे, खा रहे थे कुछ और भी, तो कोई आया और उसने हाथ डाल दिया बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े, तो फिर उसने कहा बिस्मिल्लाह अव्वलहू आखिरहू पढ़ा। वो ये था कि कुछ खा रहे थे तो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि ऐसी बरकत हमने पहले नहीं देखी। फिर जब उन्होंने बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू किया तो फिर वो दिखाने के लिए जो भी मामला था वो बेबरकती उसके अंदर आई, क्योंकि शैतान उसके अंदर शरीक हो गया था। तो शैतान ने जो निगाह उगल दिया था, वो आप अलैहिस्सलाम मुलाज़ा फरमा रहे थे, को खाना खा रहा था, तो फिर उसने आखिर में बिस्मिल्लाह अव्वलहू आखिरहू पढ़ा, तो उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए थे। तो यूँ मतलब यह कि बिस्मिल्लाह तो इतनी आम है कि मैं नहीं समझता कि मुसलमान के किसी बच्चे को हम ऐसा पाएँ कि कभी ज़िंदगी में उसमें उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी ही ना हो, यानी ये इम्पॉसिबल। बल्कि हमारे यहाँ तो मुसलमानों में तो रस्म बिस्मिल्लाह राइज है कि पहली बार उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं या बिस्मिल्लाह पढ़ाकर लोग जमा होते हैं, कुछ जिक्र खैर होता है, कुछ दावत होती है ना, ये किसी बुज़ुर्ग को लाया जाता है, उससे पढ़वाते हैं। तो ये लफ्ज़ बिस्मिल्लाह, इसलिए मुझे ताज्जुब हुआ कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए कि बरकत आ जाएगी तो फिर काम तो ख़त्म नहीं होगा, नऊज़ु बिल्लाह। बरकत का माना ये नहीं, बरकत का एक माना ये कि वो यानी कि जम जाना, कोई काम है उसमें या तो बढ़ोतरी हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा, या वो काम जो है वो ज़ाया नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, वो जम जाएगा, रुक जाएगा, समझे। तो इसके ये फ़वाइद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब बिस्मिल्लाह पढ़ी, अब बिस्मिल्लाह पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, पानी ख़त्म ही नहीं होगा तो घड़े के घड़े पी जाऊँ, पीता ही रहूँगा बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो ट्राई कर लो कि इस तरह की बरकत होती है कि नहीं आपको, कि आप पानी का प्याला लें, गिलास लें और पिएं तो पीते चले जाएं, और खाने की थाल पर बिस्मिल्लाह पढ़ें, प्लेट पर, तो ये खाते रहें और देखो कि देखिए ख़त्म हो जाए और जाता रहे, ऐसी बरकत तो ज़ाहिर है कि ऐसा तो कुछ है नहीं। बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, हर हाल में पढ़नी चाहिए, जहाँ जहाँ जायज़ है। कि जो काम बगैर बिस्मिल्लाह के किया जाता है, जो इकराम वाला काम, एहतराम वाला काम, जिसमें शरीयत ने रोका नहीं है बिस्मिल्लाह पढ़ने से, बाज़ जगह रोका शरीयत ने, तो उसका वो अधूरा रह जाता है अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो। कि अल्लाह के प्यारे मेरे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी अहम काम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया जाता वो अधूरा रह जाता है। हवाला जामे सगीर सफ़ा 391, हदीस पाक नंबर 6284। और जुम्मे के दिन का भी कुछ वही मकसूद था कि जुम्मे के दिन भी बरकत वाला होता है, तो इसमें भी कोई काम शुरू करेंगे तो लंबा ही हो जाएगा, तो इसलिए कोई काम शुरू नहीं करना। जुम्मे को तो सांस भी नहीं लेना चाहिए, ये काम है सांस लेना। सांस लेंगे तो चल अंदर जाती रहेगी, पेट का क्या बनेगा, फेफड़ों का क्या बनेगा, तो ये मुराद थोड़ी होती है। जुम्मे को तो मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जुम्मे की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है, 70 नेकी। और जुम्मे को एक गुना 70 गुना है, लेकिन एक गुना किया तो ये 70 गुना किए जुम्मे को। जुम्मे की अहमियत है, बरकत वाला दिन है, रहमत वाला दिन है। अल्लाह हम सबको बरकतें दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या करोगे तो हदीस में व बरकातुहू माइनस अल्लाह की आप पर सलामती हो, अल्लाह पाक की तरफ से आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, अल्लाह की तरफ से आपको सलामती हो, आपको बरकतें मिले, आप पर रहमतें हों, और व बरकातुहू, और उसकी तरफ से आपको बरकतें मिले, उसकी बरकतें आपको नसीब हों। तो ये तो सलाम में भी
वबरकातुहू। तो यूँ मतलब नमाज में भी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमाज में भी बरकातुहू माइनस करेंगे तो नमाज के बहुत बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इंशाअल्लाह बाज़ मकामात पर इस्लामी भाइयों का मदनी मुज़ाकरा इज्तिमा भरपूर अंदाज से नज़र आ रहा है और अल्लाह पाक बरकतें दे। ये हफ्तावार जो हमारा मदनी मुज़ाकरे का इज्तिमा है, इसमें ज़्यादा तादाद में शिरकत करना हमें दुनिया और आखिरत में बहुत भलाइयाँ इंशाअल्लाह अता होंगी। ये डेरा इस्माइल ख़ान खैबर पख्तूनख्वा, माशाअल्लाह आप भी जमा हुए हैं। हर हफ्ते जमा होने की आप भी नियत करें। एक और मकाम आपको दिखाते हैं, ये समानाबाद टाउन लाहौर पंजाब। माशाअल्लाह अल्लाह पाक आपका भी आना कबूल फरमाए। अच्छी तादाद हर हफ्ते माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मकामात पर अगर आप जमा होते रहेंगे। ये आई थिंक जौहर टाउन होगा, नहीं लिया पंजाब। माशाअल्लाह लिया पंजाब में आप जमा हुए हैं। तो यूँ मुख्तलिफ़ शहरों में इस्लामी भाइयों की भरपूर तादाद, तो सारे मिलकर कोशिश करें और इस तरह आप मदनी मुज़ाकरे के रात को इज्तिमाई तौर पर जितना बेहतर तरीके से जमा होंगे तो इसी कदर इंशाअल्लाह हमें फ़वाइद मंबासा कीनिया। तो माशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह करीम आपको सबको हाजी बनाए, मीठा मदीना दिखाए, आखिर तक रुकिएगा। ये अलग इतनी जगह है। मेहनत करके जमा इस्लामी भाई करते हैं, ये जमा होते भी हैं। तो जब तक मदनी मुज़ाकरा चलता रहे बस आपकी भी इसी जगह सांस चलती रहे, आगे भी चलना हो। जब सलातो सलाम हो जाए तो बस ठीक है, फिर आप मेरे अमीरे अहले सुन्नत आप पर कुर्बान, मैं आप पर कुर्बान, आप पर कुर्बान। एहसान है अतार का एहसान। मुर्शिद असांजो मदनी मकसद छा है? सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। आका हमने मीठा मदीना मीठा काबा एक बार बोले लो आका, मदीना शरीफ एक बार मदीना शरीफ बोले लो आका। हमने मीठा मदीना मीठा काबा एक बार बोले लो आका, मदीना शरीफ एक बार मदीना शरीफ बोले लो। प्यारे बाबा जान इसका मतलब बता दीजिए। मुर्शिद अरशार का एहसान है, अत्तार का एहसान। मुर्शिद अरशार का एहसान है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। की बारगाह में पानी पीने के मंदिर खोल पेश करूंगी। पानी बैठ कर नजारे में देख कर इतिहास से सर ढक कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भर कर पीना चाहिए।
प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामुल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और इन सबको माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और सारे ख़ानदान समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इमदाद कुन, यानी कि मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद फरमाइए। अज बंद गम आज़ाद कुन, यानी गम की जो बंदिशें, गम के जो जंजीरें, और मैं जो गम की जंजीर में जकड़ा हुआ हूँ, इससे मुझे आज़ाद कर दीजिए, छुड़ा दीजिए। दर दीन और दुनिया शाद कुन, मुझे मेरा दीन और दुनिया जो है वो सब दुरुस्त रहे और मैं खुश रहूँ इसमें, दीन मेरे हाथ से ना निकले, दुनिया में भी मुझसे गुनाह ना हो, और मैं मतलब दुनिया और दीन दोनों में कामयाब रहूँ। या गौसे आज़म दस्तगीर, ए मेरे फरियाद सुनने वाले, गौस माने फरियाद सुनने वाला, ए मेरे फरियाद रस, बड़े फरियाद रस, ए मेरे या गौसे आज़म दस्तगीर, दस्तगीर माने हाथ पकड़ने वाला। ये दस्तगीर बोलते हैं, 10 माने 10, तगीर का माना पता नहीं है, हमारे यहाँ दस्तगीर बोलते हैं। असल लफ्ज है दस्त, दस्त माने हैंड, गिर माने पकड़ने वाला, दस्तगीर यानी हाथ पकड़ने वाला, मीनिंग मदद करने वाला, हेल्प करने वाला, हेल्पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो बेशक अल्लाह पाक ने हमारे गोश्त पाक को मदद करने की ताकत बख्शी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना गर्ल्स दारुस्सलाम कोरंगी के मदरसतुल मदीना की बच्चियाँ हमारे साथ हैं, और जिनका पैकेज भी हमने देखा माशाअल्लाह, और कुछ कार्ड वगैरह भी ये अपने साथ लाई हैं। कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियाँ, रह न जाऊँ मैं कहीं, कर दो करम फिर या नबी। दावत इस्लामी जिंदाबाद। इनके कार्ड पर माशाअल्लाह नारे लिखे हुए, हर सहाबी ए नबी, सब सहाबियात भी, 4 याराने नबी, हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह, ये इन्होंने अपने मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी के शोबाजात इन्होंने लिखे हैं। मदरसतुल मदीना, जामियातुल मदीना, शोबा मदनी कोर्सेज, दारुस्सुन्ना, और ये इस तरह के सारे दावत इस्लामी के जो शोबाजात हैं तकरीबन ये लिख के लाए, इनके यहाँ कार्ड पर लिखे माशाअल्लाह। इस पर लिखा हमारा मदनी मकसद। आपको पता है हमारे मदनी मकसद क्या है? बताएं। मुझे अपनी और सारी दुनिया की इस्लाह की लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है माशाअल्लाह। ये चारों सहाबा कराम खुलफा राशिदीन के नाम इनके पास लिखे हुए हैं। हज़रत सैयदना इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह, अमीर रसूल आपके लिए इसाले सवाब भी आया है, और इनके कार्ड पर इसाले सवाब लिखा है। कुरान मजीद 12, सूरह यासीन 120, सूरह वाक़िया 182, सूरह फातिहा 2305, सूरह मुज़म्मिल 1100, सूरह इखलास 2305, सूरह फलक 2000 मरतबा, सूरह नाज 2000, सूरह रहमान
1112 مرتبہ، سورہ کوثر 23,000 مرتبہ، درود پاک 23,000 مرتبہ، کلمہ طیبہ بھی ہے، یا سلام و درود تنجینا، تسبیح فاطمہ، سورہ ملک، یہ سب آپ کو اصالہ ثواب کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ، جنہوں نے اصالہ ثواب کیا اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے۔ ان کے کارڈ پر ایک فرمان مصطفیٰ لکھا ہوا ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ واہ، چاند ستارہ، ستارے پہ مدنی چینل، اور چاند پر لکھا ہے مدرسۃ المدینہ دارالسلام۔ واہ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ۔ یہ تو مدرسۃ المدینہ گرلز دارالسلام کورنگی کی بچیاں تھیں، اور اسی طرح پی آئی بی کالونی فیضان اسلامی کے اسکول کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور یہ بھی کارڈ لے کر آئے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی، آئی لو دعوت اسلامی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ امیر رسمت، ماشاءاللہ ان کے ساتھ بہت سارے جو بچے آئے ہیں، اور پیرنٹس بھی ان کے ساتھ ہیں۔ فیضان اسلامک اسکول کے بچوں کے تقریباً 30 کے قریب پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں، اور مدرسۃ المدینہ گرلز کے تقریباً 20 کے قریب سرپرست ہمارے ساتھ ہیں، تو انہیں دعاؤں سے بھی نواز دیں، اور یہ بھی آپ کو کوئی مدنی فیس دے دیں اگر۔ ماشاءاللہ، سب کو خوش آمدید۔ سارے بچے اللہ کرے باعمر عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کریں، بار بار میٹھا مدینہ دیکھیں۔ سرپرستوں کو چاہیے کہ آج خصوصیت کے ساتھ ان کی ترکیب بنی ہے تو اسی مہینے میں 3 دن مدنی قافلے کے مسافر بھی بن جائیں۔ جن کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے اظہار کر دیں۔ اگر دل میں نیت ہے تو، ورنہ دل میں نیت نہیں ہے اور نیت کا کہیں گے کہ میں جاؤں گا تو گناہ گار ہوں گے۔ 100% نیت ہو تو ہی نیت کا اظہار کیا جائے، ورنہ پھر خاموش رہیں، کوئی گن پوائنٹ پر تو آپ کو لے نہیں جائے گا مدنی قافلے میں۔ SMS کے ذریعے سوال ہے افضل اتاری، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت نکاح کی دعوت میں کھلا سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت نکاح کی دعوت میں کھلا سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت جو ہے جس نے قربانی کی نا، یہ اس کا مالک ہے۔ مستحب یہ تھا کہ 3 حصے کرتا، ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ رشتہ داروں کو، اور ایک حصہ اپنے استعمال میں رکھتا۔ تو اگر کسی نے پورا بانٹ دیا جانور تب بھی جائز، پورا غریب کو اٹھا کر دے دیا تب بھی جائز، کٹنے کے بعد قربانی تو ذبح ہوا، جانور قربانی ہو گئی۔ تو اب یہ کہ یا رشتہ داروں کو، کسی رشتہ دار کو پورا اٹھا دیا یا پورا اپنے فریج میں ڈال دیا، جائز صورتیں کہ مستحب ہے جو میں نے 3 حصے کا آپ کو عرض کیا۔ تو اب اگر کوئی شادی کے کھانے میں اس کو استعمال کرتا ہے، چاہے وہ اپنا تیسرا حصہ بچا ہوا استعمال کر رہا تھا تو مستحب پر بھی اس کا عمل ہو چکا، اگر پورا جانور بھی استعمال کرتا ہے کوئی منع نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، بالکل کر سکتا ہے۔ اب کولڈ اسٹوریج بڑے بنے ہوئے ہیں گوشت سنبھالنے کے لیے، وہ سنبھالتے ہیں لوگ۔ اب ظاہر پیسے بچانے کے لیے ویسے بھی اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، 10 بڑے جانور قربان کر کے وہ بھلے اسٹور کر لے، بہت بڑی دعوت اس کو کرنی ہے تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ SMS کے ذریعے ایک اور سوال ہے، سائل کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک فلیٹ خریدا ہے اس لیے کہ بچوں کی شادی کے بعد ان کو دے دیا جائے گا، تو کیا اس فلیٹ پر زکوٰۃ یا اس کی وجہ سے مجھ پر قربانی لازم ہوگی؟ ویسے بھی نہیں ہوتا نا فلیٹ پر تو، اس کے فلیٹ کی قیمت کے حساب سے، اچھا، چونکہ اس لیے کہ استعمال میں نہیں ہو، اس فلیٹ پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوگی، البتہ یہ کہ اگر
ये निसाब की कदर पहुंचता है। और कुर्बानी के लिए तो खैर इतनी तो आजकल तो कीमत बहुत ज़्यादा है फ्लैट की, तो वो कुर्बानी उस पर वाजिब हो जाएगी, जबकि जिन दिनों कुर्बानी उस पर वाजिब होनी है उन दिनों इसके पास हो। पहले से कुर्बानी वाजिब होने से पहले उस फ्लैट को उसने फना कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो फिर वो अब उस फ्लैट की वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। हाँ, उसकी रकम अगर उसके पास है तो फिर शराइत पाए जो नहीं, इस सूरत में फिर वो वाजिब होना पाया गया तो कुर्बानी करनी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हैदराबाद से बिलाल ये सवाल कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इमाम की तनख्वाह बहुत कम है, तो क्या इमाम अपनी परेशानियों का इजहार करके लोगों से सवाल कर सकता है? इसलिए तो इमाम के लिए मखसूस नहीं है, यानी कि वो जो फ़कीर, एक तो फ़कीर एक मिस्किन। फ़कीर वो होता है जिस पर जो निसाब की कदर रकम उसके पास नहीं होती, निसाब की कदर माल, न ज़कात उस पर फ़र्ज नहीं बनती, ये फ़कीर कहलाता है। और भी उसमें तफसीलात हैं। मिस्किन वो होता है कि जिसको न एक दिन का भी खाने का नहीं है, या खाने का है तो पहनने का नहीं है उसके पास, तो इस तरह ये मिस्किन की तारीफ में आता है। तो फ़कीर सवाल नहीं कर सकता, मिस्किन कर सकता है। खाना नहीं है तो खाने के लिए सवाल कर सकता है, पहनने के लिए नहीं है तो पहनने के लिए सवाल कर सकता है। तो आप बता रहे इमाम साहब की चूंकि तनख्वाह है तो इसका मतलब है कि उसको खाने पीने का, पहनने का उसके पास है। तो अब ये अगर वाकई ऐसा है, ये मिस्किन नहीं है या इतना मकरूज नहीं है कि सारा दे दे, तो बिल्कुल मतलब कपड़े भी इसके पास ना रहे, वो फिर हो सकता है कि इसकी सूरत बने सवाल की। लेकिन इमाम का जो मनसब है ना, ये बहुत मुअज़्ज़ज़ मनसब है, इज़्ज़त वाला मनसब है। अगर ये सवाल करेगा और किसी को पता चलेगा तो लोग फिर उससे बज़्ज़न होंगे, और फिर ये लोग जो नहीं ये आगे पीछे देखते नहीं है, ये फौरन मौलाना के खिलाफ हो जाते हैं। मुंडाना जो चाहे करे, डाके मारे, चोरियां करे, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। कोई बेचारा मौलाना अगर बाअमरे मजबूरी भी कुछ करता है तो उसके खिलाफ ये बोला बोली कर देंगे। मौलाना हलवा खाते हैं, मौलाना मुर्गियाँ खाते हैं। पहले यूँ बोलते हैं मुर्गी, शायद अब नहीं बोलते होंगे, अब बकरा खाते हैं यूँ बोलते होंगे, बकरे का गोश्त महंगा है। पहले मुर्गी महंगी थी, हमको पता है। लेकिन किसी ने जवाब दिया था, किसी ने कि उसको किसी ने कहा कि मौलाना मुर्गी खाते हैं, तो उसने जवाब दिया कि मुर्गी हराम है, हलाल खाता है ना मौलाना, तो जाहिर है कि हराम तो नहीं है मुर्गी, न उस वक्त ही, ना अब हराम, न बकरा हराम है। तो ये लोगों की पता नहीं, मौलाना कोई भूल करे तो अखबार वाले हरकत में आ जाएंगे, मीडिया वाले शोर मचाएंगे, और इनके जो हम बिरादरी जो होते हैं मुंडाना जो बोलते आप समझ ही जाते होंगे, इनको ये कुछ नहीं बोलते, ये घर का आदमी अपने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। कोई भी अगर कोई से भूल करता भी है और इसकी हाजत नहीं अगर किसी को बताने की, तो उसका फिर ऐब छुपाना किसको बोलते हैं, ऐब छुपाया जाए। हदीस पाक में जो किसी मुसलमान का ऐब छुपाएगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा, ये मजमून हदीस में मौजूद है। तो मुसलमान का ऐब छुपाना जरूरी है, न कि उसका डंका बजाना। अब तो सोशल मीडिया पे डंके बज रहे होते हैं, ऐब हो या ना हो वो डंके बज रहे होते हैं, शुबह पर ही डंके बजा देते हैं लोग, तो माज़अल्लाह फिर तोहमत का शिकार हो जाते हैं और मजीद गुनाहगार होते हैं। और अगर वाकई उसमें ऐब है भी, तब भी ये देखा जाएगा कि इसका ऐब आम करना शरन जरूरी भी है या नहीं है। तो ये बस इल्म ना होने की वजह से, जहालत की वजह से और मालूमात की कमी, ये जहन सोबतें, तो ये मतलब बंदे को मजीद गुनाहों के गार में धकेलती रहती है। तो अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे। हम अपने ऐबों की टटोल करते रहे, अपने ऐब देखते रहे, दूसरों के ऐबों की टटोल में ना पड़े। ये कुरान करीम ने मना फरमाया, वला तजस्ससू, और तजस्सुस मत करो, जासूसी मत करो। जासूसी से मुराद हमारे यहाँ जासूसी कहीं और निकल जाते हैं, जासूसी नावल आ जाती है जहन में बाजू का, ये मुराद दिए नहीं। तजस्सुस करना, टो में पड़ना, किसी की मतलब खोज लगाना, तो यहाँ मुराद है किसी के गुनाह की टो में लगना, कि किसी का ऐब, किसी का गुनाह हम कुरीद कर देखें तो हमको पता चले। तो इसलिए मैं मना करता हूँ कि किसी को ये नहीं पूछो कि नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते।
मना है ना वाला तजस्सुस, फिर नहीं पढ़ता नमाज तो ये आपको बोल देगा कि मैं नमाज नहीं पढ़ता। तो अब ये कि इस बेचारे का गुनाह जो था आप पर जाहिर हुआ, और ये बेबाकी कहलाती है। आपने सुना होगा गुनाह में बड़ा बेबाकी, दिलेर। तो ये इसको जो अलल एलान गुनाह करता है, गुनाह को बताते हुए उसको कोई झिझक नहीं होती, ये बेबाक कहलाता है। और ये बेबाकी बहुत खतरनाक है। एक तो गुनाह बंदा छुप के करता है और शर्माता है, खौफ खुदा उसके अंदर, वो डरता है कहीं इसकी सज़ा ना हो जाए, अजाब ना हो जाए, कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, मेरी रुसवाई ना हो जाए, दुनिया की रुसवाई आखिरत की रुसवाई से वो खौफजदा है। ये इसको बेबाक नहीं बोलते। अगरचे वो जानबूझकर गुनाह कर रहा है तो गुनाहगार, लेकिन वो बड़ा गुनाहगार, खतरनाक गुनाहगार है जो गुनाह से डरता नहीं है, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी से भी किए ना, इसको कोई परवाह ही नहीं है। मतलब ऐसा ये इसको बेबाक बोलते हैं। अल्लाह पाक बेबाक किसी भी बचाए और छुपकर गुनाहों से भी बचाए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का शेर, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, बंदा गुनाह जुर्म करता अपने रब का, है ना, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। गुनाह से लोगों से तो छुपा दिया, लेकिन रब को तो पता है कि तुमने गुनाह किया है, उससे तो कोई छुपा नहीं सकता। तो इसलिए मतलब न छुपकर गुनाह कर रहा है, न अलल ऐलान कर रहा है। गुनाह गुनाह है। एक छोटा सा गुनाह भी जहन्नम में झोंक सकता है। अल्लाह पाक से हम पनाह मांगते हैं, हर गुनाह की हम तौबा करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हालिया दिनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री और कुछ इलाकों में 50 डिग्री तक जाने का खदशा है। शदीद गर्मी अब सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि ये आलमी मसला बन चुका है। माहिरीन सेहत के मुताबिक 30 मई से 4 सितंबर 2022 के दरमियान यूरोप में गर्मी और इससे मुतालिका वजूहात की बाइस 61,672 अफराद की अमवात हुई। 1990 के बाद से 30 सालों के आदाद शुमार को पेश नजर रखते हुए की गई एक तहकीक में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि दुनिया भर में हर साल 1.53 लाख से ज्यादा अमवात हीट व्यू की वजह से होती है। दुनिया भर में हीट व्यू से जुड़ी अमवात में चीन का हिस्सा जहां तकरीबन 14% जबकि रूस का तकरीबन 8% बनता है। हीट स्ट्रोक कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा हम 2015 में आने वाली हीट वेव से लगा सकते हैं, जिसमें सिर्फ जून के कुछ दिनों में कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 2000 से जायद अफराद की अमवात हुई। मौसम गर्म हो या सर्द, कुदरत ने हमारे जिस्म का एक दर्जा हरारत रखा है जिस पर हमारा जिस्म बेहतरीन अंदाज में काम करता है, और वो दर्जा हरारत है 37.5 सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे जैसे हमारे माहौल का दर्जा हरारत बढ़ता है हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, जो कुदरत की तरफ से दिया गया एक निजाम है। पसीना हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। ज्यादा पसीना बह जाने की सूरत में कुछ अलामात भी जाहिर होती हैं, जैसे सर चकराना, बेहोश होना, कमजोरी महसूस करना, सर में दर्द वगैरह। इसे लू लगना भी कहते हैं और मेडिकल की जबान में हीट स्ट्रोक कहते हैं। जिन लोगों को हीट स्ट्रोक का ज्यादा खतरा होता है उनमें बुजुर्ग और बच्चे, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार अफराद, अमराज कल्ब के हामिल अफराद, ज़ियाबेतस, शुगर के साथ रहने वाले अफराद शामिल हैं। सवाल ये है कि हीट व्यू से बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। मौसमी असरात से बचने के लिए किन फलों, सब्जियों और मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। हीट वेव में बूढ़े, बच्चे, बेजुबान परिंदे और छोटे पेड़ पौधे भी मुतासिर होते हैं। उनके लिए क्या इकदाम होने चाहिए। शहरों का हजम बढ़ता जा रहा है, हरियाली कम हो रही है जिससे दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इज्तिमाई तौर पर हमारा क्या किरदार होना चाहिए। जवाब इरशाद फरमा दें। अल्लाह पाक दुनिया की शदीद गर्मी के नुकसान से भी हमें महफूज रखे। कब्र की गर्मी, क़यामत की गर्मी, फिर जहन्नम की गर्मी, अल्लाह इससे भी हमारी हिफाजत करे। मौत की गर्मी, ये भी गर्मी। खैर हम मतलब दुनियावी गर्मी कोई आमतौर पर फोकस करते हैं, कब्र वगैरह की गर्मी की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। हालांकि बुजुर्गान दीन के वाक़यात हैं ऐसे कि आग को देखकर बेहोश हो जाना, जहन्नम की आग को याद करके। गर्मी से हिफाजत के मदनी फूल पेज नंबर 3 पर है, 3 से 4।
दुनिया की गर्मी की शिद्दत के वक्त आखिरत की कड़ी धूप और तड़पा देने वाली प्यास नीज जहन्नम की खौफनाक आग को याद करके उनसे पनाह मांगी है। ये हदीस का हिस्सा नहीं है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब हदीस पाक शुरू होती है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सख्त गर्मी होती है तो बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, आज बड़ी गर्मी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि जहन्नम, यानी ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम की गर्मी से पनाह दे। अल्लाह पाक दोज़ख से फरमाता है मेरा बंदा मुझसे तेरी गर्मी से पनाह मांग रहा है और मैं तुझे गवाह बनाता हूं कि मैंने इससे तेरी गर्मी से पनाह दी। और हाँ, आखिर में फिर सर्दी का भी तज़किरा है। और जब सख्त सर्दी होती है तो बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, आज कितनी सख्त सर्दी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन ज़महरीरि जहन्नम, अल्लाह मुझे जहन्नम की ज़महरीर से बचा। अल्लाह पाक जहन्नम से फरमाता है मेरा बंदा मुझसे तेरी ज़महरीर से पनाह मांग रहा है और मैंने तेरी ज़महरीर से इसे पनाह दी। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की जहन्नम की ज़महरीर क्या है? फरमाया वो एक गड़ा है जिसमें काफिर को फेंका जाएगा तो सख्त सर्दी से उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हवाला अल बुदूर साफिरा, सफ़ा 418, हदीस नंबर 1395। तो यूं मतलब ये कि दुनिया की गर्मी देखकर आखिरत की गर्मी, जहन्नम की गर्मी को बंदा याद करे और उससे आखिरत की गर्मी से, जहन्नम की गर्मी से पनाह मांगे। तो इस तरफ तवज्जो कम होती है। तो दुनियावी गर्मी का ही लोग इलाज वो बाज़ औक़ात वो भी ढूंढते हैं, इलाज करते नहीं है। हम लोगों के पास गर्मी का इलाज ये होता है एसी में घुस गए, है इलाज तो ही है। लेकिन ये भी आपने अभी इस सवाल में देखा कि वो पसीना बहता है तो वो गर्मी को वैसे बर्दाश्त करने की कुव्वत आ जाती है, गर्मी में कमी आ जाती है उसकी, कि जो अंदर जो उसका 37 पॉइंट कुछ मतलब ये कि 37.5 जो है वो उसमें गर्मी अंदर होती है उसके, इस तरह कुछ कहा कि इससे बढ़ती है तो फिर उसको निकलने का असबाब, वरना वो नुकसान करेगी अंदर रहेगी तो पसीना बहता है। तो अब ये पसीने को हम सुखाते हैं पंखे के जरिए या एसी के जरिए, तो ये बाज़ औक़ात ये चीज़ें भी नुकसान करती हैं। अच्छा, फिर यह कि बाज़ औक़ात पसीना ज़्यादा बहता है तो अब हर चीज़ की लिमिट होती है, हद से जो भी चीज़ बढ़ेगी वो नुकसान दे। बहुत ज़्यादा पसीना अगर बहेगा तो बदन के नमकियात ये निकलेंगे, नमकियात जब निकलेंगे तो फिर वही बदन में कमज़ोरी महसूस होगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा अगर नमकियात निकलते हैं, लो हो सकता है। फिर वो बताया कि सर का दर्द वगैरह और कुछ ना कुछ ऐसी अलामत होती है कि बाज़ औक़ात ज़्यादा पसीना बहने से भी बंदा बेहोश हो जाता है। और अमवात भी इसकी साबित है गर्मी की वजह से। पिछले 2-3 साल पहले तो हमारे यहाँ कराची में कोहराम मच गया था, वो भी रमज़ान शरीफ में इतनी सारी अमवात हुई थी गर्मी की वजह से। और जिनको रमज़ान शरीफ में गर्मी ने असर किया तो वो अगर रमज़ान में फौतगी ना हुई तो बाद में उनका इंतकाल हुआ कुछ जिंदा रहकर रमज़ान शरीफ के बाद। तो इसमें मेरी बड़ी बहन का भी इसी तरह हुआ था, वो रोज़े तो रखती थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस वो उनको भी वो उन्हीं दिनों वो गर्मी तो वो की तबीयत जो भी थी वो ख़राब हुई और फिर बेहोशी और हालत इता, मतलब वो अक्ल ने बराबर काम नहीं कर रही थी उनकी, भूल जाती थी, सबको पहचान नहीं पाती थी। बड़ी बहन ना जी, आप फालिज, दिमाग में फालिज, पानी की कमी की वजह से दिमाग पर फालिज गिर गया 2017 में ये वो, और फिर आखिरकार उनकी वफात हो गई, अल्लाह गनी का रहमत फरमाए। तो अब यह कि सबकी अमवात जो हैं जिन जिन की गर्मियों से हुई, इन सबकी वो लिस्ट में वो नाम आना ये ज़रूरी नहीं है। ये जो लिस्टें देते हैं ये अपनी जगह पर इनकी जो भी होती हों, लेकिन एक तादाद ये भी होती है कि जो मतलब इंदिराज नहीं होता इनका। जैसे मेरी बहन घर में ही थी,
वो वफात के टाइम पर वो आखिर तो हॉस्पिटल में ही इनकी वफात हुई, लेकिन ये कि उसमें भी कोई गर्मी और ये कोई गालिबन वो तो रोज़ा रखा, पानी की कमी, गर्मी की वजह से ना, वो तो ज़माने से मेरी जब से होश संभाला रोज़ा रखती थी मेरी बहन, तो पानी की कमी, पसीना निकल जाना वगैरह, या पानी पीने में भी एहतियात नहीं करते, ये आम है। आप में से गौर कर लें कौन कितना पानी पीता है, कोई 2 गिलास, कोई 3 गिलास, कोई 4 गिलास, वो भी पूरे गिलास नहीं पीते, अधूरे पीते। तो कम से कम इन दिनों तो इन्हें देखा जाए तो मेरा ख्याल है 15 गिलास पीने चाहिए, ऐसी गर्मियाँ। अच्छा, और पसीना ज़्यादा आता है, कोई काम ज़्यादा करता है, बेगारी करता है, तो ऐसी मजदूरियाँ करता है, या ठिया लगाता है या ठेला चलाता है, उनके पसीने बहुत बह रहे हैं, तो इनको 25 गिलास की ज़रूरत है, अगर तो 25 गिलास भी पीने पड़ेंगे। ये कौन पिएगा? डॉक्टर को जवाब दे देना, नहीं दोगे जवाब तो बिस्तर को दे देना, वो बेहोश करके सुला देंगे आपको, क्या करेंगे? तो ये कि पानी तो पीना पड़ेगा। जिसके देखो गुर्दों में इफेक्ट हो रहा है, गुर्दे इफेक्टेड हो रहे हैं, जिसको देखो इतने सुन रहे हैं, इसके गुर्दे फेल हो गए, उसके गुर्दे फेल हो गए, बेचारा वो डायलिसिस पे आ गया। आप इनको पूछोगे ना, तो इसमें एक तादाद जो, अगर आप सवाल करें पानी कितना पीते थे, यहाँ ये है, मार खा जाएगा मरीज जो है, हाँ यार पानी। तो इसलिए मैं सबको मशवरा दूंगा कि गर्मी हो या सर्दी, पानी का ख्याल रखें। गर्मी में भले 8 से 10, सर्दियों में 8-10 गिलास भी चल जाएंगे, गर्मी में 10-12 बल्कि 15। आपको रहता ही एसी में 4 दीवारी में, तो उसको थोड़े गिलास लेंगे, 12 गिलास भी किफ़ायत कर जाएंगे। और जो गर्मियों में पसीने बहाता है उसको 20-25 गिलास चाहिए उसको। तो इस तरह ही अपना हिसाब लगाएं। मैं आपको मतलब जो मशवरा दे रहा हूँ, आप किसी डॉक्टर से वेरीफाई कर लें इसको। आपको यूँ लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ या आपको समझना है कि मौलाना वो क्या समझ पड़े, तो आप डॉक्टर साहब को पूछना, मुंडा ना की मान ले, मेरी ना माने, मैं तो आपकी फिर भी भलाई चाहूँगा, क्योंकि आपको सबको मिलकर नमाजें पढ़नी है, मस्जिद आबाद करनी है। सारे बिस्तरों में आ जाओगे तो मस्जिद आबाद कौन करेगा? ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे, सुन्नतों के लिए सुन्नतों पर अमल करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे। बीमार पड़ गए तो आपके माँ बाप फिर आपको याद करते रहेंगे कि मेरा लाल कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पानी ज़रूर पिए। दूसरा ये कि सत्तू शरीफ का पानी पिए। सत्तू पानी में घोल कर कुछ गुड़ डाल के उसको मीठा करके ठंडा करके आप इसको पिए, अल्लाह करेगा तो टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। ये सत्तू शरीफ, जौ शरीफ का सत्तू, मीठा मदीना, ये पिए आप, सब तैयार मिल जाता है। जौ शरीफ का मिलता है, गेहूं का मिलता है, तो ये लेकर आप पिए। अच्छा, और नींबू पानी पिए। ये गर्मी का इलाज बता रहा हूँ आपको। नींबू पानी, नींबू पानी किस तरह बनता है? पानी में नींबू नहीं चौड़ा, उसमें वही आजकल तो खांड डालते हैं वाइट, तो ये नुकसानदेह होती है। वैसे ही वाइट खांड को मैं पसंद नहीं करता सफ़ेद चीनी, बल्कि इसकी जगह पे अपना इस्तेमाल गुड़ का है ज़रूरतन, हत्तल इम्कान गुड़ का इस्तेमाल। तो गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है, हो देसी गुड़, वरना ये जो खूबसूरत गुड़ मिलते हैं ना, ये केमिकल से साफ किए हुए होते हैं, फिर इसके अपने साइड इफेक्ट। देसी गुड़ मदीना मदीना, तो ये इस्तेमाल करें आप। और फल इस्तेमाल करें, खुसूसन जो सर्दियों में, गर्मियों में जो फल आते हैं ना, ये अल्लाह पाक की एक निज़ाम है अल्लाह पाक का। गर्मियों में वो फल आते हैं जो गर्मी को फ़ायदा करते हैं, सर्दियों में वो फल आएंगे जो सर्दी में फ़ायदा करेंगे। तो आजकल तरबूज, खरबूजा, पपीता वगैरह वगैरह, इन फलों का सीज़न है। अल्लाह ने आम आने वाले हैं, सुना है, आ चुके हैं, ज़ियारत नहीं की, वो आ चुके हैं। अब ये कि सर आम तो गरीबों को खाली दिल जलाने के लिए बता देते हैं नाम, यार कि आम भी एक फल होता है। ये बेचारे गरीब कहाँ खाएंगे यार इसको। तो वैसे पहले मौसम का फल, पहले मौसम का आम नहीं खाना चाहिए, शुरू का आम नहीं खाना चाहिए, फिर दूसरे तीसरे जो फिर आता है ना, ने पहली फसल जो उतरी उसका आम मना करते हैं। एक डॉक्टर बहुत स्मार्ट थे बूढ़े वैसे स्मार्ट थे, और ऐसी बातें बताते थे। तो बोल रहे थे कि हम लोग जब मैंने कोई पहली मौसम का आम खाए ना, उसको बोलते थे कि हम मरना है, पहली मौसम का आम खाते हो, अभी तो आया है, अभी नहीं खाओ।
तो वो इन्हें बचपन में बड़ा वैसी बातें करते थे। पहली मौसम का आम मुनासिब भी नहीं है और मीठा भी नहीं होता, ज़्यादा फीका फीका होता है, एकदम भाएगा भी नहीं आपको। थोड़ा मौसम, हाँ ये दिखाया हम जो, क्यों भाई गरीबों का दिल जलाते हो यार। बहुत मैं आम क्या मतलब, जो मैंने जिन फलों का नाम लिया वो सबके सब सारे फल तो ऐसे महंगे। तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ कि मैंने एक साहब को मशवरा दिया कि आप फल खाया करें, तो उसने बोला मेरे यार इतने इतने बच्चे, मैं फल कैसे खा सकता हूँ। तो ठंडा हो गया मैं कि वाकई ये नहीं कि अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, अल्लाह करे कि सस्ताई हो जाए या तनख्वाह इसके मुकाबले में बढ़ जाए। दोनों सूरतें, तनख्वाहें उसके मुकाबले में बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। अल्लाह करीम, तो जिससे जितना हो सके, वरना वो कि वो जो सत्तू शरीफ नींबू पानी कदरे सस्ता पड़ेगा फलों के मुकाबले में, तो इनका अगर आप मामूल रखेंगे, इस तरह की और चीज़ें, मतलब ये नींबू दिखा रहे हैं आपको, गालिबन ये नींबू, हाँ ये सत्तू शायद, तो 12 ले गए, नहीं सत्तू नहीं कुछ हो रहा है यार। ये वहाँ पर नींबू भी 200 रुपये पाव और 800 रुपये किलो। नींबू है तो महंगा, लेकिन फल के मुकाबले में सस्ता नहीं है, क्योंकि नींबू आधा नहीं छोड़ोगे तो गिलास तो बन जाएगा ना, एक 100 रुपये का बनेगा, नहीं 200 रुपये पाव, 800 रुपये किलो, 800 रुपये किलो। तो पाव में मतलब जैसा नींबू यार, इतने बड़े बड़े वो तो तुरंज के जाते ना, नींबू तुरंज सही है सब, लेकिन नींबू भी अब अच्छे नहीं मिलते यार। मोटे मोटे छिलके वाले, छोटे भी मोटे वाले छिलके, खुश्क, निचोड़ो तो निकले क्या उसमें, मुझे कुछ कचरा गिरेगा उसमें। नींबू की एक कॉपी आ गई, जमेरी नाम का एक फल है, नींबू की तरह होता है और नींबू की बनिस्बत नुकसानदेह होता है। क्या नाम है उसका? जमेरी। जमेरी, उसको नींबू कह के, जमेली, जमेरी, जमेरी, जमेली, जमेरी, जमेरी, अच्छा। तो उसको नींबू की जगह पर इस्तेमाल, नींबू कह के भेजा जाता है और लोग नींबू समझ के, खट्टा भी होता है, खट्टा ज्यादा होता है, गला खराब करता है, गला खराब करेगा। ये पहचान, नींबू तो कागजी नींबू अगर मिलते हो ना, ये महंगे मिलेंगे, कागजी माने के बारीक छिलका होगा, ये नींबू अच्छा होता है। बाद फलों के छिलके पतले पतले होते हैं उसी के, बास के मोटे मोटे होते हैं, पतला छिलका जो होता है वो कागजी, तो ये क्वालिटी, तो ये उसके पैसे भी क्वालिटी के, तो ये ज्यादा उसमें रस निकलेगा। और रस निकालने के लिए फ्रिज में से निकाला आपने नींबू और काटा और निचोड़ा तो रस नहीं निकलेगा मजे का। इसको थोड़ा चूल्हे के पास रखें या किसी तरह भी इसको हीट पहुंचाए ना, तो नींबू को जब हीट पहुंचाएंगे ना, तो इसके अंदर का जो जमा हुआ रस है ना, ये पिघलेगा, अब वो मजे का दबाओगे तो गिरेगा। ये हमेशा खाने में भी याद रखें। अच्छा, फिर क्या, नींबू के आधे आधे फाड़ियाँ हम बोलते हैं, 2 फाड़ियाँ करते हैं, 2 पीस करते हैं नींबू के, तो ये तरीका भी हो रहा है, शो आता है इससे, लेकिन सही निचड़ता नहीं है इससे। पूरा निचोड़ना चाहे तो इसके लिए फिर कोई अखाड़े का पहलवान बुलाना पड़ेगा, अपने से नहीं निचड़ेगा। तो इसके 4 या 8 पीस करने चाहिए नींबू के, और छोटे छोटे पीसों, तो ये निचड़ेगा आसानी से, खाने में भी ज़ाया भी नहीं होगा, वरना आधा थोड़ा सा निचोड़ के डाल देते हैं लोग, फिर डस्टबिन में जाता होगा। इतना लोगों को एहतियातें हैं नहीं कि दूसरे का जूठा नहीं भाई फेंको, इसको फेंकने का रवाज बहुत है। महंगाई का ये भी बहुत बड़ा सबब अगर हो तो इनकार नहीं हो सकता। अच्छा, फिर ये कि नींबू को काटना भी एक फन है। अब बाज लोग क्या, बल्कि भारी तादाद, या बहरहाल मैंने जो नोट किया बता रहा हूँ कि नींबू को काटते लंबाई में, ये गलत है। नींबू हो या मौसम्बी, जिसको काट कर रस, जिसको खाने में सहूलत हो, तो लंबाई में। मेरे पास नींबू होता तो मैं आपको समझाता कि लंबाई बोलते किसको, चौड़ाई किसको बोलते हैं। इसमें भी शायद सबको समझ नहीं आएगी। ये चौड़ाई में कटा हुआ है, और ये नोक नजर आ रही है ना नींबू की, तो ये यूं खड़ा करके इसको काटेंगे ना, तो लंबाई में काटना कहेंगे, और ये सही कटा है चौड़ाई में। तो नींबू को चौड़ाई में काटेंगे तो ये सारे जो ऊपर की जो इसकी नींबू की जो पॉकेट्स हैं, थैलियाँ छोटी छोटी, ये सब कटेंगी। वरना लंबाई में ये थैलियाँ नहीं कटती, बस वो चमड़ा ही कटता है उसका, और थैलियाँ अक्सर सलामत रहती हैं।
फिर निचड़ने में आसानी होती है। ये दुकानदार भी, होटलों वाले भी उसी तरह काटते हैं लंबाई में, नोट किया है। कोई सही काटता है, कोई गलत काटता है, मतलब तो सबको ने ट्रेनिंग या सूचका पड़ता नहीं है। तो ये भी एक हिकमत की बात आपकी खिदमत में अर्ज की। और चूल्हे के पास रखेंगे तो इंशाल्लाह ये रस ज़्यादा देगा, अंदर सारा पिघलेगा। फ्रिज के बाहर निकालते ही काटा तो फिर अब उसको उंगलियों की वर्जिश होगी, जिसको आपने दिया ना एक्सरसाइज। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जवाब दीजिए। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज अदा फरमाए? सोच समझ कर आओ। अल्हम्दुलिल्लाह परसों मैं हज पे जा रहा हूँ, मेरी दुआ कीजिएगा मैं खैर आफियत से हज कर लूँ। और बड़ी उम्मीद थी आपसे मिलने की मुझे ना। सुभान अल्लाह। चलो निगाहों से मुलाकात और बल्कि बात हो रही है, दीदार हो गया, बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। चलें जवाब भी दीजिए और मदनी फीस भी दीजिए साथ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया, हज किरान। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक आपका हज कबूल फरमाए, मदीने की हाजिरी कबूल फरमाए, नसीब भी हो जाए तो जिंदगी का भरोसा नहीं है। अल्लाह पाक आसानियां भी कर दे। और बारगाह रिसालत में हमारा भी सलाम अर्ज कीजिएगा। शेख़ करीमैन के दरबार में जहाँ जहाँ हाजिरियाँ हों सलाम अर्ज कीजिएगा, बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। हम भी हज के लिए हाजिर हो जाएं। अल्लाह करे वैसे अचानक से असबाब भी तो हो सकते हैं। मदनी फीस कितनी होती पता नहीं मुझे। जी पता नहीं मुझे कितनी। खर्चा बहुत हो गया ना आज का, तो कहाँ से देंगे यार। अब मदनी फीस यही बोल सोचता हूँ, मतलब इतना खर्चा तो हो गया। 3 दिन इंशाल्लाह मदनी काफिले में जाऊंगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। तारीख भी दे दीजिए, डेट। इंशाल्लाह हज से आने के बाद इंशाल्लाह 3 दिन मदनी काफिले पे जाऊंगा। प्रोग्राम में बकी शामिल नहीं है। बिल्कुल क्यों नहीं चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला मुझे करा दे। क्या कह रहे? कह रहे बिल्कुल चाहिए इंशाल्लाह। बकी चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको चाहिए इंशाल्लाह। यानी हमारे यूं बाज़ औक़ात बोलते हैं कि अगर बकी में जगह ना मिली तो वापस आकर मदनी काफिले में सफ़र। तो आपको डेट भी पता होगी वापसी की? वापसी तकरीबन 28 जून की। 28 जून के बाद पहला जुम्मा हफ्ता इतवार इंशाल्लाह। पहला जून 28 जून के बाद पहला जुम्मा हफ्ता इतवार इंशाल्लाह मैं मदनी काफिले में सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह उल करीम। माशाअल्लाह। इन्हें 7 रसाइल पेश किए जा रहे हैं तोहफे में इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो इनको ये भी पता है कि एक हज हुआ था, उस हज का नाम भी क़िरान है। तो आपको पता है कि कितने हज हैं? नाम हज की किस्में कितनी है? जी हज की इक़साम कितनी है आप देंगे? काइंड्स ऑफ हज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हज? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस ताजरान की सलाम लाहौर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस ताजरान के साथ लाहौर से। क्या बात है। हज किरान, आज की 3 किस्में हैं, हज किरान, हज तमत्तो, हज इफराद। जवाब दुरुस्त है। मैंने किस्में पूछी थी, इन्होंने तो नाम भी बता दिया। तो इनका डबल इनाम देना होगा, मदनी फीस भी डबल लेनी होगी। अब देखो सही सब क्या भी कह दी इस्लामी भाइयों ने भी उधर से कहा पापा से दुआ कराने। ये लाहौर से आए हुए हैं हुजूर और चल मदीना का मुतालबा कर रहे हैं। चल मदीना मुतालबा कर रहे हैं। जी जी। सुभान अल्लाह। कह दो मुर्शिद चाल मदीना, कह दो मुर्शिद चाल मदीना। लाहौर जो है पंजाबियों का देश है वो, माशाअल्लाह, और दीवानों का देश है माशाअल्लाह। अल्लाह ये भी नसीब कर देगा कि हम मिलजुल कर भी हज करेंगे इंशाअल्लाह। मिजाब रहमत किसे कहते हैं? इनसे मदनी फीस ले लें पहले। जी जी मदनी फीस तो पेश करें मीर सुन्नत का। 3 दिन मदनी काफिला सफर करेंगे। तारीख जुल्हज्जा में इंशाअल्लाह। जुल्हज्जा जुम्मा जुल्हज्जा का जुल्हज्जा का इंशाअल्लाह 3रा जुम्मा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जुम्मा हफ्ता इतवार। जी जी माशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करीम। इन्हें भी 7 रसाइल तोहफे में पेश किए जा रहे हैं। माशाअल्लाह। मिजाब रहमत किसे कहते हैं?
زیر میزاب ملے خوب کرم کے چیٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے امیر علیہ سنت مرکز الاولیاء لاہور سے تاجران کے مدنی قافلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. رحمت انشاءاللہ عزوجل ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ کرنے کی نیت کرتا ہوں اور ذوالحجہ کے تیسرے جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. جی رحمت کے پر نالہ کو کہتے ہیں مذاب رحمت کہتے ہیں. پرنالہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک. بارش کا جو پانی جہاں سے نکلتا ہے جی وہاں سے کعبۃ اللہ شریف کے اوپر سے. عربی میں میزاب کہتے ہیں. یہ کعبہ شریف کی چھت کے ساتھ ایک سونے کا پرنالہ لگا ہوا ہے. اس کو پرنالہ اردو میں ہم بولتے ہیں کہ ایک ایسا حصہ لگا ہوا ہے کہ جس سے بارش کا پانی جب بارش ہوتی تو پانی حتیم میں نچھاور ہوتا ہے. حتیم شریف یہ بھی کعبہ شریف کا حصہ اور عین کعبہ ہے. یہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. اس میں وہ بارش کا پانی جو ہے وہ نچھاور ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پرنالے سے پانی گرتا ہے تو یہ نچھاور ہوتا ہے. اچھا لفظ ہے. بات تو وہی ہے مانا. انہیں دعوت اسلامی کا ماہنامہ میگزین فیضان مدینہ تحفتاً پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. جواب دیجئے میلین اخضرین سے کیا مراد ہے؟ یہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ تھوڑا مشکل ہے. ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا. اٹھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فخر الدین اتاری رحیم یار خان سے انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. تاریخ صاحب تاریخ بھی بولتے جائیں. انشاءاللہ نئے سال کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں محرم شریف کے پہلے ہفتے میں. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. میلین اخترین جو صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں وہ 2 جو مینا وہ ہیں پلر ہیں ان کو میلین اخترین کہتے ہیں. جواب درست ہے. اس میں ہری بتیاں جل رہی ہوتی ہیں. اچھا پلر. تو پلر میں بھی لگا ہوا چھت میں بھی لگی ہوئی سبز لائٹیں. جواب پہنچ گئے. یہ جو کہنا چاہتے الفاظ ماشاءاللہ جواب درست مان لیا جاتا ہے. انہیں بھی زیارت بھی کر لو میلین اخضرین. انہیں بھی ماہنامہ فیضان مدینہ تحفتاً پیش کیا جائے. یہ چھت میں لگی ہوئی ہے. اب چھت پہ دیوار میں اب نہیں ہے. اچھا جواب دیجئے جن 10 صحابہ کرام کو اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعمان اتاری جامعۃ المدینہ فیضان قطب مدینہ نیو کراچی. ان کو مدنی فیض انشاءاللہ محرم الحرام میں 3 دن کا مدنی قافلہ. محرم الحرام میں 3 دن کا مدنی قافلہ. سالانہ والے لگ رہے ہیں. پچھلے سال بھی گئے ہوں گے. یار کوئی مدنی فیس دو. وہ تو طے شدہ جو ہے اس کو مدنی فیس نہیں بولتے. ہر مہینے 3 دن دعوت اسلامی والوں کو تو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی درخواستیں ہوتی رہتی ہے. یہ تو جامعۃ المدینہ کے طالب علم. تو ان کا تو باقاعدہ وہ ان کو تو جدول ملتے ہیں. اس کے مطابق سفر کرنا چاہیے. ہمت کرے بیٹے انشاءاللہ عزوجل. جامعۃ المدینہ کے جدول کے مطابق سفر کرنے کی نیت کر لیں. اسی کو مدنی فیس تسلیم کر لیتے ہیں. انشاءاللہ باپ. اس پر عمل نہیں ہے نا.
अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी कमजोर है यार, कराची के लगते हैं यार ये। अशरा मुबशरा कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। इन्हें भी माहनामा फैज़ान मदीना तोहफतन पेश किया जा रहा है। उस मुबारक मस्जिद का नाम बताइए जिस में अल्लाह पाक ने अपने सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर मुसलमानों का क़िबला तब्दील फरमाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम हैदर अत्तारी, पाउल मदीना, कराची से। मदनी पीस इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदरसतुल मदीना बालेगान में कुरान करीम पढ़ने की नियत करता हूँ। कब से शुरू कर दिया है या शुरू कर दिया बाबा? कर दिया ना, तो अब कोई नई फीस लाओ ना यार, प्लस मदनी काफिला भी करने। इंशाअल्लाह बाबा। तारीख भी दे दें। मुहर्रम हराम में। आशूरे में चलो खैर, कोई ऐसी इजाफी नहीं तो सालाना लगा बंदा काफिला होता है। ये मुहर्रम शाह पौधे हमारे पास तो खाली इसमें जाते हैं, इसके अलावा न इज्तिमा में आना है, न सफ़र कर रहे हैं मदनी काफिला में। अब उसमें भी एक तादाद होती होगी जो बस सेल्फियाँ बनाना, कोई शो पीस आ गया उसके पास खड़े होकर सेल्फियाँ बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते होंगे। तो बेशक वो आशूरे वाले मदनी काफिले में सफ़र करें, जो नहीं करते भी करें, वे जदवल के मुताबिक करें, जो अपनी जो मजलिस है, जो अपने मुबल्लिगिन जो और उनकी इताअत में करें। बेचारा मुबल्लिग को भी थका देते होंगे, क्या इधर भागते होंगे उधर भागते होंगे, तो ये कुछ एक तादाद उन दिनों अनगढ़ जाती होगी सालाना, समझे। तो वो हाथ में पता नहीं कोई आता होगा नहीं आता होगा, तो इससे ऐसा नहीं करना है। जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक करेंगे तो फिर आपकी इस्लाह भी होगी। जो शेव्ड होगा अपने को शेव्ड मिलेगा, मैं इतने साल से जा रहा हूँ, जो जैसा होगा मिलेगा, बाकी वही का वही रहते हैं। घूम फिर के बाद लोग आ जाते होंगे, तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ जाना है और सीख के आना है, खुद को बदल के आना है इंशाअल्लाह। जी क्या कह रहे हैं आप? बापा इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में और जुमेरात इज्तिमा में पाबंदी के साथ शिरकत करूँगा इंशाअल्लाह करीम। ये बात हुई ना। मुबारक मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन है। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, वो मैं कई बार सोचा है, भूल जाता हूँ, क्या ये मुमकिन नहीं है कि 3-4 माइक हो? अब ये बेचारे आगे बैठे हैं, शुरू से आके बैठ जाते हैं। इनको तो मेरू जो आखिरी में वो खा पी के वो टेस्ट से लेट आए और माइक के पास चला जाए, हाथ उठा ले, उसको माइक मिल जाए। व्हाट इज दिस? बेचारा आगे आगे इनका दिल जलता होगा, हमारी तो कभी बारी आएगी नहीं जब तक हम मिस नहीं करेंगे मदनी मुज़ाकरा अदा उदा कि हम लास्ट पे बैठे, तो शायद हम भाग के माइक के पास पहुंच जाए। तो इन पर कोई रहम करने वाला है या नहीं है? जो बेचारे आगे आगे आके पाबंदी से बैठे होते हैं। इंशाअल्लाह ये हाथ भी यही लोग उठाते हैं, बीच में थोड़ा कम ही उठाने वाले हाथ होते हैं। तो कोई 4 हमारे माइक तो बहुत है यार। जी जी इंशाअल्लाह सारा सिस्टम मौजूद है, तो 5-7 माइक हो और ताक के बंदे को, मतलब भले गलत जवाब देता है तो इसका हौसला बढ़ेगा। गलत भी जवाब देता है तो बाद में सुधार तो हो ही जानी है। तो ये भी एक नाजरीन के लिए भी दिलचस्पी होती है इसमें भी। अगर कोई जवाब नहीं दे पाता तो कोई अर्ज नहीं है, जबकि आखिर में हम सुधार तो कर ही रहे उसकी, क्या सही जवाब आ जाता है। नहीं दे पाएंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ से कोशिश करेंगे सही जवाब पहुँचाने की नाजरीन तक, हाजरीन तक। तो आइंदा से इंशाअल्लाह आप मायूस न हो, बकरीद आ रही है इंशाअल्लाह। 10 मदनी मुज़ाकरों में हो सकता है कि ये आपकी बारियां आती रहें। चांद रात से 10वीं रात तक, जुल्हिज्जा की चांद रात से 10वीं शब तक रोजाना अल्लाह ने चाहा तो मदनी मुज़ाकरा होता रहेगा। और आपने दिल बांध कर कमर कस के नियत कर लेनी है कि बस
कुर्बानी के दिन है, तो मैंने ये कुर्बानी देनी है कि जाके बैठ जाऊंगा फैज़ान मदीना में। ईशा की नमाज यहीं पढ़नी है जिनके लिए मुमकिन है, वरना नमाज पढ़ के पढ़ा कर बाज़ इमाम साहिबान भी आते होते हैं, नमाज पढ़ा के पहुँच जाना। ठीक है, इंशाअल्लाह एक से एक दिलचस्पियाँ भी लाने की कोशिश की जाएगी और इंशाअल्लाह आपको खूबसूरत प्यारे प्यारे जानवर भी कुर्बानी के दिखाएंगे इंशाअल्लाह, मज़ा आएगा, है ना। वैसे इन जानवरों को वैसे देखने में इतना दिलचस्पी नहीं होती, तो कुर्बानी के दिन आते हैं तो क्या कशिश इनमें पैदा हो जाती है कि इनको देखने को जी चाहता है कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले होते हैं। इनकी निस्बत ही होती है कुर्बानी की, अब कुर्बान हो या ना हो इनके नसीब, बात फौत भी हो जाते हैं, निस्बत की बाहर है। बात बिकते नहीं है तो बेचारे बेचने वाले दोबारा ले जाते होंगे या फिर उन्हें पौने दामों गोश्त फरोश को बेच देते होंगे। अल्लाह करम फरमा, जरूर तशरीफ लाइएगा, इसकी दावत भी आम कीजिएगा। चांद रात से लेकर 10वीं रात तक रोजाना मदनी मुज़ाकरा देखना है, दिखाना है, इस्लामी भाइयों को लाना है, इनको दावत पहुंचाना है, इंशाअल्लाह मदीना 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 उतारेगा। और मैं असल में जा रहा था उसके ऊपर, क्योंकि इससे पहले जो एक बहुत ज़बरदस्त मदनी मुज़ाकरा होने वाला है, एक बहुत ज़बरदस्त मदनी मुज़ाकरा होने जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, अच्छा इसका ताल्लुक भी घूम फिर के है तो बकरीद से। हाँ, और वो है 4 तारीख, 4 जून है, मंगल है, ईशा की नमाज के फौरन बाद है। और वो क्या होने जा रहा है, मैं कहा अगर आप ही बता दो ना अपने फौरन बाद है, ईशा की नमाज के बाद है। ईशा की नमाज पढ़ते ही ईशा की नमाज 9:15 बजे, 9:15 बजे जमात है और उसके बाद शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तिलावत नात शरीफ वगैरह का क्या होने क्या जा रहा है। अच्छा इंतजार करवाएंगे इसका भी, आपका नाज़रीन भी आंखें मल मल के उठ के आकर बैठ जाए कि ऐसा क्या होने वाला है। अच्छा अपने को बोलना कोई दिखाना नहीं है, नहीं आपने बोलना है। इंशाअल्लाह करीम 4 जून मंगल को ईशा की नमाज के ईशा की जमात 9:15 बजे मंगल को, तो ईशा की जमात आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में 9:15 बजे, तो ईशा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह वो गोश्त फरोशों का मदनी मुज़ाकरा, क्योंकि बुध को इनकी छुट्टी होती है ना, मंगल बुध गोश्त की, तो इसलिए वो इन्हीं के मशवरे से हुआ है कि ये दिन रखेंगे मंगल को। तो ज़रूर तशरीफ लाइएगा इंशाअल्लाह। इसमें जानवर काटने के जो अहम मसाइल हैं कि जो मतलब गलतियाँ होती हैं वो भी बतानी है, गोश्त के हिसाब से भी इंशाअल्लाह आपको हैरत अंगेज़ मालूमात पेश की जाएंगी इंशाअल्लाह, आप हैरान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है अगर आप पूरा सुनेंगे तो ऐसी प्यारी प्यारी मालूमात आपको हासिल होंगी। गोश्त फरोश भी तशरीफ लाए और जो गोश्त खोर हैं खाते हैं वो भी करम फरमाए। ये सिर्फ सबको दावत है, ये सिर्फ कराची वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, इंशाअल्लाह दुनिया भर में जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, इस काम से वाबस्ता हैं, उन तमाम इस्लामी भाइयों के लिए ये मदनी मुज़ाकरा होगा। तमाम ज़िम्मेदारान दावत इस्लामी इज्तिमाई तौर पर इसमें शिरकत करें और इस शोबे से जितने भी वाबस्ता लोग हैं उनको इज्तिमा में दावत देकर लेकर आएँ। और इनसे रिलेटेड जो शोबे हैं ना, मैं उनको भी दावत पेश करता हूँ, उनके पास भी आप पहुँच कर इनको तैयार करें। चारा बेचने वाले जी माशाल्लाह, केटल फार्म वाले जी, जो जिंदा जानवर बेचते हैं वो भी, जो जो इस शोबे से रिलेटेड है वाबस्ता है, आप सबको ले आए इंशाअल्लाह, सबके काम की बातें होंगी इंशाअल्लाह। बल्कि इसके जो डॉक्टर हैं वो भी आ जाएं। हाँ बिल्कुल, वेटरनरी डॉक्टर भी तशरीफ ले आए, पूरा शोबा है दावत इस्लामी के तहत। और भी कुछ इसमें याद आए ना, जी हाँ, जो इसकी फार्मिंग करते हैं जी हाँ, वो सबको वो भी तशरीफ ले आए। जो इज्तिमाई कुर्बानी करेंगे पापा वो भी आ जाएं। बिल्कुल, इज्तिमाई कुर्बानियों वाले भी जो करते हैं वो भी तशरीफ ले आए माशाल्लाह। जो जानवर को रस्सी पकड़ के चलाते हैं उनको भी दावत है, मरहबा। दुम पकड़ते हैं इनको भी दावत है जानवर की, तो हम बताएंगे दुम पकड़नी चाहिए कि नहीं पकड़नी चाहिए। मवेशी मंडी वाले भी पापा आ जाएं, मवेशी मंडी वाले, मवेशी मंडी वालों को भी दावत है। सुभान अल्लाह। हमें दुम पकड़नी चाहिए कि नहीं?
وہ بکری کو اس طرح کھینچ کے لے جا رہے تھے تو نبی کان سے اصل لے جاتے جی آگے لے آگے سے پکڑ تم سے کھینچتے نہیں اصل کان پکڑ کے تو کان پکڑ کر کھینچنا تو منع ہے جی جی پھر وہ پیچھے سے چلانے کا منع فرمایا پیچھے سے یوں چلاتے ہیں یعنی وہ حدیث میں یوں ہے کہ وہ کھینچ کے لے جا رہے تھے تو اس سے منع فرمایا کہ اس کو ہانک کے لے کر جاؤ یعنی ایک تو کھینچنا ہوتا ہے آگے سے اور ایک پیچھے سے ہانکنا ہوتا ہے کان کھینچتے ہیں اس کو تو منع ہے جی دم کا نہیں دم کا نہیں ہونا دم کا تذکرہ نہیں ہے لیکن ظاہر دم ہو یا کان ہو دم کو بھی اگر اس طرح تکلیف سے مروڑیں گے تو بعض وقت دم ٹوٹ جاتی ہے دم ٹوٹ جاتی ہے اور اس کو وہ ٹیپ وغیرہ لگا کے جوڑ دیتے ہیں یہ بالکل یہ شاید میں نے دیکھا بھی ہے جڑی بھی اس میں بھی میرا خیال دکھائی تھی یا اسی میں دیکھا ہوگا اسکرین پر یہ بھائی مدنی چینل کے جو اپنے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ایسے مطلب جو دم کے اور نقلی دانت لگانے کے اور جو مطلب ہے نا اسٹائل ان سب کے مطلب یعنی فورٹیج بولتے شاید جی جی فورٹیجز یہ تیار رکھیے گا انشاءاللہ ایسے دلچسپ یہ مدنی مذاکرہ ہوگا گوشت فروشوں کا کہ انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا بہت سیکھنے کو ملے گا مگر یہ کہ صبح چھٹی نہیں ہے ان کی چھٹی آپ کی چھٹی نہیں ہوتی عام لوگوں کی یوں تھوڑا ڈسبیلنس معاملہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب لاہور سے جو تاجران اسلامی بھائی آئے ہیں ان میں سے ایک اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سیدی ہم 16 کے قریب مختلف شعبہ جات سے بزنس مین لاہور سے آج ہی مدنی مذاکرات میں شرکت کے لیے تشریف لائے ماشاءاللہ الحمدللہ مجلس نے ہمیں فیضان مدینہ کے مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور اس کا نظم و نسق اور اتنے بڑے مینجمنٹ کو دیکھ کے عقل دنگ رہ گئی اور بے اختیار دل نے کہا کہ واہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم بزنس مین کاروباری شخصیات جو ہیں یہ بزنس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک اس میں لگے رہتے ہیں اور جب گھر پہنچتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں جبکہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں
تو ایسی صورت میں ہم بچوں کی جو تربیت ہے وہ کیسے کریں؟ ہماری کوئی رہنمائی جو ہے وہ فرمائیں اس بات سلسلے میں. جزاک اللہ. یا اللہ پاک، یہ تو آپ کو ہی مینیج کرنا پڑے گا. دیکھو کچھ پانے کے لیے کھونا تو پڑتا ہے، سونے کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہی ہوں گے کہ سونا ہے وہی. تب یہ تو سونا ہے، اصل سونا آپ کی اولاد ہے، گولڈ. اس کو بھی تو سنبھالنا ہے نا. تو اس لیے وہ ان کی تربیت تو خیر وہ تعلیمی اداروں میں ان کو بھیجا جاتا ہے، اور ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. اور والد صاحب بھی چھٹی کے دن، اور چھٹی کے دن بھی کچھ نہ تو یوں ٹائم نکل تو آتا ہے یا نکالنا تو ہوگا کہ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ سب اس کو دیکھ بھال تو کرنی پڑے گی، ورنہ ظاہر ہے کہ پھر مشکلات کھڑی ہوگی. قرآن کریم میں ہے قُوا انفسکم وَأَہْلِیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تو یہ کوششیں تو اپنے اہل پر، اپنی اولاد پر کرنی ہے. تو یہ تجارت اور یہ مصروفیت تو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن آپ کو بچا نہیں سکتی، صرف اس وجہ سے آپ نہیں کر پائے تربیت. تو اس لیے اپنا جو بھی ہے ایسا جدول یا جو بھی آپ کا مطلب ہے کہ حساب کتاب ہے وہ مینیج تو کرنا ہی پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. کدو شریف یعنی لوکی شریف کے فائدے. کدو شریف کھانا سنت ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، لہذا گرمیوں میں خصوصاً استعمال کرنا چاہیے. کدو شریف کے استعمال سے تھکن میں کمی آتی، کمزوری دور ہوتی، بھوک لگتی اور قبض میں فائدہ ہوتا ہے. کدو شریف جگر یعنی لیور کے درد، پیشاب اور معدے کے امراض اور پیلی یعنی جوائنٹس میں فائدہ مند ہے. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ، کیا تنگ دستی بھی نعمت ہے؟ پڑھیا سن لے، اس کی تنگ دستیاں ہوں تو دور فرما، اسے رزق حلال میں برکتیں دے اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے انسان کس کے لیے پیدا کیا گیا، جنگل میں گھی اور شہد کی تمنا، 2 چیزیں جوان رہتی ہیں اور بہت کچھ. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ خشوع و خضوع والی نماز. دنیا بھر میں اسلامی بھائی 18,38,701 18,38,701. دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 8,81,485 8,81,485. مجموعی مطالعہ کارکردگی 27,20,186 27,20,186. تعداد کے حوالے سے رسالہ پوزیشن شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں پاکستان. ذوالقعدات 1445 میں ملنے والی 3 روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 5,498 5,498. اسلامی بہنوں کی تعداد 36,275 36,275. ٹوٹل تعداد 41,773 41,773.
18 मई 2024 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। अहनाफ के नजदीक केकड़ा खाने का क्या हुक्म है? जवाब हराम है। सवाल नंबर 2, आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह के औराद व वज़ाइफ की कौन सी किताब है? जवाब अल वज़ीफ़तुल करीमा। सवाल नंबर 3, रिश्वत लेने देने के बारे में क्या हदीस पाक बयान हुई? जवाब रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिन्त मोहम्मद शरीफ अत्तारिया, रहीम यार खान, नौमान अत्तारी, अरब शरीफ, मोहम्मद जुबैर, आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची, कैसर अब्बास बिन अब्दुल जान, जौहर टाउन लाहौर, बिन्त अब्दुल हकीम अत्तारिया, जतोई पंजाब, साजिद महमूद अत्तारी, कोयटा बलूचिस्तान, गुलाम मुस्तफ़ा, जमालपुर। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम मोहम्मद जुबैर, आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी कि अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। आइंदा हफ्ते मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, दिल की सख्ती के इलाज में चंद चीज़ें बताई गईं, कोई एक बताएं। सवाल नंबर 2, नमाज में कमर पर हाथ रखना कैसा है? सवाल नंबर 3, हदीस मुबारक में बग़ैर बिस्मिल्लाह कोई काम शुरू करने के मुतालिक क्या फ़रमाया गया? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया